Sir, eagerly, I'm Shomit Shah, General Secretary BHM. I am Rishikesh, BHM Deputy General Secretary, Mess Abats. I'm Shorter Gobil, Deputy General Secretary, Maintenance Desk. So as I see it, the general structure of BHM is there's a GSEC at the top, and there are two leaded sects from the fourth year. From the third year, we have Den Sekis. We have Sekis for BHM, and we have at each hostel a main Seki and a mess Seki. And then for second year students, we have BHM website. So overall structure is that the main Seki, is more or less coordinate with the main DSEC, and the mess Sekis correspond to the main mesh DJSEC, and overall the DSEC looks at the 40 position. So firstly coming to the first question, like what sort of issues should a student maybe approach, or what sort of issues actually come under the purview of BHM? If you would try to clarify that, it will be easier so that we can set some sort of scope for the interview. Anything dealing with the hostels is dealt by BHM. We overlook the maintenance issues such as the ACs, the washing machines, the cleaning of washrooms. Maybe a ceiling has fallen off. So even look after that through the infrastructure team. Other than that, we have the mess admins overlooking the mess, the development of the mess, the vendors who provide the items that are the raw vegetables, and if you have the item that is used for food. The BHM representatives coordinate with the mess and maintenance keys, who overlook the entire process to help them. And you have at the hostel level the householding committees who look at the policies of the hostel. We have certain subcommittees, the maintenance and the mess committees, the most relevant committees in the hostels. So certain other committees that we don't need to worry. So beginning to the first question, in your proposal, sir, we had talked related to you. Sorry, you had talked about how you plan to integrate BHM and IDD subsidy for the mess purpose, right? Earlier, the institute had actually scrapped this subsidy, and then they were hired as contractual laborers, and their fees was paid from student or mess side. So, why do you think that the institute will reinstate them, or what sort of plan do you have, sir? Actually, the institute does not reinstate them exactly by themselves. In the Senate meetings, they pass such proposals based on the justification. So, what the justification for including subsidy and what is the need for BHM to be included in IDP? BHM is now a not-profit organization, currently not included in IDP, but comes under SAC. So, given the structure right now, BHM cannot hire workers, and given they are not government posts, they cannot be eligible for subsidy. So we are proposing, sir, BHM to be integrated into IITD so that the mess fees, which are a lot higher than other IITs, to be reduced, because there are people from various backgrounds and we want IITD to be an inclusive place for all Indians, even from different backgrounds. वेबसाइट के बारे में when we talk, I feel कि वेबसाइट की रीच थोड़ी सी कम था. ओवरऑल BHM रेप्स अगर एक BHM मिल ले हर एक हॉस्टल में और वेबसाइट के बारे में बताए, फीचर्स के बारे में बताए, तो ये सब चीज़ें काफ़ी रेलिवेंट हो जाएंगी, बिकॉज एन एवरेज स्टूडेंट इन IDG will never open the BHM constitution and read it. So, I think Somik, जो टूर ऑफ स्टॉल्स किया था, सॉरी जो टूर में जो मिशा सेशंस, उसमें ही ओपनली पब्लिसाइज एंड काफ़ी ज़्यादा मैचिंग किया था रिगार्डिंग द यूजफुलनेस ऑफ द BHM वेबसाइट. बट आपका पॉइंट ये है कि अभी उसकी रीच बहुत कम है, क्योंकि शायद इतनी ज़्यादा अपडेट्स नहीं आती हैं वेबसाइट पे कि लोग कंपेयर उस फीस को खोल लेके ले. सो वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट मोर एंड मोर फीचर्स इनटू द BHM वेबसाइट एंड इवन मेकिंग एन ऐप जिसका लिस्टेज शायद बेटर बता पाएगा, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द पायनियरिंग पीपल जो कि शुरू कर रहा है. ही इज़ ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट द मैसेज इन बता पाएगा एंड देन यू बी इनकॉर्पोरेटिंग द मेंटेनेंस थिंग. एक्चुअली आई थिंक इन डिटेल्स जो बाद में आते, क्योंकि अब मैस वाली चीज़ें स्टार्ट होंगी ज़्यादा वो कनेक्ट कर पाएगा. बट एसेंशियली वी आर प्लानिंग कि इनिशियली मैथ्स रिलेटेड चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करेंगे, फिर उसका ज़्यादा रिलेवेंट है. उसके बाद फिर जैसे मेंटेनेंस पोर्टल हो गया या ईटर्स रिलेटेड ईपैक्स है, वो शो वो भी वहाँ पे स्पेस. मेंटेनेंस पोर्टल एक बनाया था, तो आप उसके बारे में मुझको बताना चाहिए. मेंटेनेंस पोर्टल जस्ट ये पर एग्जिस्ट करता है एंड स्टूडेंट जनरल रिक्वेस्ट तुम वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो अंदर उसकी कंप्लेंट सेक्शन या सडन सेक्शन हो. तो उसके अंदर तुमने जब
अपना कंप्लेंट लॉन्च किया. इट वॉज द केयर टेकर फॉरवर्ड टू द जूनियर इंजीनियर who looks after the distribution of the work. Depending on the type of work, maybe civil work, electrical work, a certain code is generated. अभी करंट की CSE को हमने ये टास्क दिया है कि वो डेवलप हो इन द सेंस कि जो कोड है केयर के पास बट स्टूडेंट के पास नहीं आता, तो दैट स्टूडेंट डज नॉट नो कि उसका कितना सामने गया है, तो कितना प्रोसेस हो चुका है. इसलिए पेपर स्कैटर नहीं है. अरे ट्रैक नहीं पॉइंट, तो ट्रैकिंग सिस्टम हम डेवलप करने का ट्राई करते. आफ्टर दैट द बेटर न्यूज़ पोर्टल विल बी अप एंड रनिंग. सर ट्रैकिंग तो ठीक है बट सवेरे जब अपडेट्स जाती है, हमने सुना 10 दिन दिन रहा उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है या पता नहीं चल रहा है कि हाँ, और शायद 3 days का अग्रीमेंट है कि 3 days में कुछ छोटी चीज़ें कर्टन रॉड्स नहीं है या फिर कारपेंटर का कोई काम है वो प्रोसेस हो जाए, तो इस पर सर तो एक्चुअली दो चीज़ें हैं इसके अंदर, तो काट कर दो. एक होता है कि कारपेंटर या प्लम्बर को टाइम ही नहीं मिल रहा है पूरी तरह कंप्लेंट से कैटर करने के लिए. सेकंड क्योंकि इन्वेंट्री आपकी है ही नहीं इतनी कि आप सफिशिएंटली पूरी कर पाओगे. मान लो मुझे अगर एक कर्टन रॉड लगवानी है या फिर मेरी टेबल नहीं है या फिर मेरी मिरर नहीं लगा हुआ है, फॉर अ फैक्ट मतलब मेरे कमरे में 25 दिन से मिरर नहीं, जब से मैं आया हूँ तक सही नहीं, तो और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी कंप्लेंट हो जाए, पूरी और नहीं हो पा रही है. सो ऐसी कंप्लेंट्स दो तरह से करेंगे हुई, एक वर्कर प्रॉब्लम हुई, मटेरियल वर्क हुई. अब ऐसा सीन है कि वॉट हैज़ हैपेंड इज, अगर आप बॉयज हाउस में देखोगे, सो इफ़ यू लुक एट द नंबर ऑफ वर्कर्स ओवर द ईयर्स, सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि नंबर ऑफ वर्कर्स कम होते जा रहे हैं. आपके एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्कर्स थे, लगभग 31-32 वर्कर्स थे 2 years बैक, और दैट नंबर इज रिड्यूस टू 23-24. तो नंबर ऑफ वर्कर्स कम होते चले आ रहे हैं आपके, डिस्पाइट द नंबर ऑफ हॉस्टल्स इंक्रीजिंग, द लोड इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग. एंड when I talk to the admin regarding this, so usually their response is that they are trying to convert this system into a AMC contract system, जिसमें आप लेबर प्लस मटेरियल दोनों साथ में चार्ज करते हो. व्हाट हैपेंस इज अभी मटेरियल हम मंगवा रहे होते हैं, लेबर हमें एक दूसरी कंपनी से आउटसोर्स हो रहा होता है, एंड दैट इंटायर प्रोसेस हैपेंस होता है. तो अब जितनी मेरी इंफ्रा जो डिपार्टमेंट है उससे बात हुई है, दे आर ट्राइंग टू गेट द L+M कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस की कंपनी ही लेबर भी लाएगी, कंपनी मटेरियल भी लाएगी और सब कुछ वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाएगा. बट अकॉर्डिंग टू द एडमिन दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 2 to 3 years. एंड जब भी उनसे रीज़न पूछो कि क्यों नहीं हो पा रहा है ये, सो दे आर क्यूरियस अबाउट कि एग्जैक्टली कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कौन सा बॉटलनेक क्रिएट हो रहा है. तो वी आर ट्राइंग टू पुश इट थ्रू द एजेंडाज, एंड मतलब होपफुली वी नीड टू इनकॉर्पोरेट दैट स्टूडेंट अफेयर्स इनटू इट, क्योंकि पाने के रेज आ रही हैं जो कि पहले एडिएशन थे. सो आई थिंक वो कॉपरेट करते हैं इस चीज़ पर, बट वी नीड टू ब्रिज दैट गैप बिटवीन द इंफ्रा एंड द एडिएशन थ्रू दिस, क्योंकि हमने रिसेंटली एक इंफ्रा मेंटेनेंस भी स्टार्ट किया है विच इज़ मेंट एग्जैक्टली फॉर दिस पर्पस, जो इंफ्रा और वर्कशॉप को साथ में लेके चल सके. एंड वी बी ट्राइंग टू पुश इट टू दैट गेट पे, और उसमें जैसे से आपके अपडेट्स बनेंगे वो हम पोस्ट करते हैं लेक्चर पर. बट दिस इज़ द प्राइमरी थिंग जो हम काम कर रहे हैं. हमारी वर्कर्स की क्वांटिटी भी कम हुई है, हमारी इन्वेंट्री इशू भी बहुत ज़्यादा है, और दोनों साथ में हैंडल नहीं हो पा रही है हमारे इंस्टीट्यूट से. सो दिस इज़ अ फॉल्ट एट द इंफ्रा साइड कि वो दोनों साथ में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. सो अगर उनके पास कोई इसका आंसर नहीं है तो वील ट्राई कि हम खुद से उसको पुश करें ताकि वो चीज़ हो पाए. मतलब वही मैं आपको बताऊँ तो मैं खुद 1.5 महीने से इस पर लगा हुआ हूँ, एंड आई ट्राई टू विजिट द इंफ्रा डिपार्टमेंट एवरी सेकंड डे, एंड आई सिट देयर फॉर 3 hours जस्ट ट्राइंग टू गेट द आंसर टू दिस. तो मैं भी आपकी तरह ही इस चीज़ में वर्क कर रहा हूँ, एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे पास कोई फीस आंसर नहीं है इस चीज़ का, बट आई ट्राई टू पुश इट एज मच एज पॉसिबल इन मैटर हियर, एंड कम से कम मेरे टर्न के एंड तक ये चीज़ स्टार्ट तो हो जाए. बट ऑन द अदर हैंड अभी इन्वेंट्री की जितनी भी शॉर्टेजेस थी उसको हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी 3-4 दिन पहले टेंडर निकला है रिगार्डिंग द रिमेनिंग इन्वेंट्री इशूज़, जितने भी हमारे छोटी छोटी चीज़ें बची हुई थी. सो दैट विल बी फिल्ड अप और वो ऑलरेडी और आपको हेल्प की जाए. सर तो ओवरऑल आई थिंक एनी स्टूडेंट मेनली कंसर्न्स थे कि HWC रिस्पॉन्ड नहीं करता या फिर ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आता या फिर इन जनरल लोगों को क्लियर नहीं होता कि कौन सा इशू सैप के अंदर आ रहा है, कौन सा टेक्निकली BHM के अंदर आ रहा है. तो आई फील कि हमने ये चीज़ें कवर कर ली, और ओवरऑल जो मेरे को पता चला है कि BHM एक ऐप बनाना चाहता है और काफ़ी सारी प्रोसेसर्स को वो उसके थ्रू करना चाहता है. तो अगर इस ऐप के विजन के बारे में हम और बात करेंगे, आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ पता चलने वाले हैं. सो ऐप का अगर मैं बैकग्राउंड दूँ थोड़ा, तो एसेंशियली क्या है कि QR सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया था. सो QR सिस्टम का बेसिक ऐसा होता है कि देयर इज़ 3 एस्पेक्ट्स. वन इज़ द स्टूडेंट जिसके वेब मेल पे QR जाता है. सेकेंड इज़ द पर्सन हु इज़ स्कैनिंग, सो मोस्टली मैं स्टाफ जिसके पास स्कैनर होता है. सो स्कैनर इज़ बेसिकली एन ऐप. और तीसरा एस्पेक्ट होता है मेस मैनेजर के लिए पोर्टल, जिस पे वो यूज़र्स को मॉनिटर कर सकता है, उसका मतलब कंजम्पशन डिटेल्स, अटेंडेंस, सब कुछ वहाँ पे दिखता है. सो इन 3 चीज़ों को, जैसे अभी सारे डिस्प्यूट चल रहे थे
हम चाह रहे थे कि इस चीज़ को हम कंबाइन करके एक सेंट्रलाइज्ड स्पेस एलोकेट कर दें. सो दैट वाज द बेसिस, लाइक इनिशियल बेसिस फॉर मेकिंग अ BHM ऐप, जिस पे मोस्टली हम प्लान कर रहे थे कि QR डायरेक्टली स्टूडेंट का वहीं पे जनरेट हो जाए. स्कैनिंग के लिए बेसिकली सेम ऐप, जस्ट एडमिन का इंटरफेस होगा उस पर. एंड स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो व्यू देयर लाइक अटेंडेंस, मेस का मेन्यू क्या है, कौन सा दिन हॉलीडे है, सपोज किसी दिन ब्रेकफास्ट नहीं होगा, किसी दिन डिनर नहीं होगा, अगर कुछ चेंज है इन द मेन्यू, अगर उनको कुछ फीडबैक देना है. और इससे मैथ सेकी को भी हेल्प मिलता है एंड मैथ्स मैनेजर को भी हेल्प मिलता है कि दे आर गेटिंग लाइव रिपोर्ट्स. ऑल्सो मैथ्स सेकी को सपोज कुछ कॉल करवाना है कुछ आइटम के रिगार्डिंग तो डायरेक्टली करवा सकता है. बट अभी उसका एक्सपांडेड स्कोप ऐसा है कि जैसे मेंटेनेंस पोर्टल का तुम लोगों को पता चल चुका है, उसको भी हम वहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं. या जैसे मान लो मैथ्स ट्रीज का है, उसको भी हम वहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है कि सब चीज़ के लिए उनको फिर ERP पोर्टल के नहीं जाना पड़ेगा. और एक्सेसिंग अ मोबाइल ऐप इज़ फार मोर ईजियर देन ओपनिंग द ERP पोर्टल. Yes. और उसका हम जो इंटरफेस है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बना देते हैं और मोर अप्रोप्रिएट फॉर ऐसे टाइप ऑफ स्टफ. मतलब मैथ्स रिलेटेड हो गया, मेंटेनेंस रिलेटेड हो गया. और मेंटेनेंस रिलेटेड भी काफ़ी इशूज़ आती है जो मतलब कुछ इशूज़ जैसे कुछ सपोज रिजॉल्व नहीं भी हो, उसका भी रीज़न सपोज तुम लोगों को पता चल जाए, जो एसेंशियली मेंटेनेंस पोर्टल का टारगेट है. और इस चीज़ को अगर हम उससे लिंक करवा पाते हैं तो विल ट्राई कि जो एप्लीकेशन होगा उस पर कर्बरोस लॉगिन हो उसकी, तो तुम्हें तुम्हारा डेटा मिल जाए और इंडिविजुअल भी हर स्टूडेंट को मिल जाए. फाइनल टारगेट थोड़ा इसका ऐसा भी है कि फाइनेंशियल डेटा भी हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें. जैसे तुमने मान लो एसेंशियली अब बैलेंस शीट की काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि मैंने मेस में इतने दिन खाए, इतने दिन का रिवेट दिया, तो अभी मुझे पैसे क्यों इतना मेस बिल देना पड़ रहा है या वो. तो ये चीज़ एज ऑफ नाउ भी वो कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम मेस मैनेजर. बट वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बैरियर्स. Yes. एसेंशियली वी डोंट वांट जस्ट अकाउंटेबिलिटी, वी ऑल्सो वांट ट्रांसपेरेंसी. अकाउंटेबिलिटी तो है, तुम जाके मेस मैनेजर से पूछोगे वो बोल देंगे, कोई बोलेगा कि आज नहीं हो सकता, कल, मतलब डिले होगा, काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, तो बहुत ज़्यादा मिलना पड़ेगा. यस, उससे बेटर ये है कि तुम्हारे फिंगर टिप्स पे आ जाए वो चीज़. तो दैट्स द मेन टारगेट ऑफ द BHM. उसका भी डिज़ाइनिंग लेवल पे है वैसे तो, मतलब उसके वायर फ्रेम्स डेवलप हो रहे हैं, उसके इनिशियल फर्स्ट इटरेशन पे काम चल रहा है, उसके क्या फीचर्स हो. तो वी आर होपफुल कि माइनर के बाद विल बी एबल टू लॉन्च इट लेवल 1 और उसके बाद उस पर रिफाइनिंग चलती रहेगी. और सर तो मेन लेवल पे अगर इंटीग्रेट करना हो उसको ऐप में, तो स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेरी रेस करे तो उसका एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट के हिसाब से मेरा क्वेरी कैकर आ जाए. कुछ हद तक जो इश्यूज़ है इन्वेंटरी रिलेटेड जो हमने बात करी थी, कि वो इन्वेंटरी रिलेटेड इश्यूज़ भी ज़्यादा अच्छे से आ पाएंगे. कि प्लम्बर के इश्यूज़ किस हॉस्टल में ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर कार्पेंटल इश्यूज़ कहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो कहाँ पे रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, या फिर काफ़ी एड लार्ज स्केल इन्वेंटरी चाहिए शेल्फ्स बनाने के लिए किसी हॉस्टल में, या मिरर्स चाहिए. तो सर क्या मेंट भी इसमें इंकॉर्पोरेट होएगा और इस इनकॉर्पोरेट होगा. मेंटेनेंस पोर्टल पूरा अकेडमिक से शिफ्ट होकर BHM ऐप पे जाने के प्लान है. एंड दैट विल इंश्योर कि अभी एडमिन बार लॉगिंग करके नहीं करो, इंस्टेड आप एक एवरेज का पूरी कर सकते हो. सेकेंडली जितने भी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काम है तो कौन सा AE या कौन सा JE देखता है उसको एट अ सेंट्रल लेवल. कि बॉय हॉस्टल में क्या होता है कि JE AEs होते हैं, क्योंकि जिसको केयरटेकर सेंड करता है रिप्रेजेंटेशन की. तो अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही है, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द AE JE रिगार्डिंग दैट इशू. क्योंकि एट दिस पॉइंट नंबर ऑफ वर्कर्स इतने ज़्यादा कम है हमारे. एंड मतलब वो ये होता है कि मतलब मेरी उनसे खुद बात हुई थी, तो वो ये बोल रहे थे कि सर इतने कम वर्कर्स होते हैं हमारे पास, हमारा एम में रहता है कि जो हमें ज़्यादा परेशान करेगा हम उसकी कंप्लेंट सॉल्व कर देते हैं, बाकी हमारा इतने बैंडविड्थ ही नहीं होती है कि सबकी कंप्लेंट सॉल्व करना है. तो एसेंशली वो वाला परसिस्टेंस का इशू आ जाता है इसके अंदर, कि हाउ मच परसिस्टेंट यू आर विद द कंप्लेंट, एंड दे थिंक दैट इज़ द मेजर ऑफ कि कितनी सीरियस वो कंप्लेंट है, एंड दे विल ट्राई टू रिजॉल्व इट इन अ सिमिलर वे. सो उसका एक ये बनाना है कॉन्टैक्ट लिस्ट एज टू वन पर्टिकुलर POC किसी चीज़ को हैंडल कर रहा है. वुड ऑल्सो इंश्योर कि स्टूडेंट्स को डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी मिल जाए कि ये पर्सन है जिसको मैं देखने वाला हूँ कि ये बंदा इस चीज़ को हैंडल करेगा. थर्डली जो चीज़ है दैट इज़ अ गेस्ट, और जो पूरी बात चल रही है दैट विल ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड टू दिस ओनली, कि आप इसके थ्रू बुकिंग्स करा रहे होगे एंड उसका अप्रूवल्स केटेगर्स जाएंगे एंड देन आपको ऐप पे विजिबल हो जाएगी उनकी आपकी कब कितने दिन पे बुक की. सर तो BHM ऐप में ये चीज़ ऑब्वियसली स्टेजेस में आएंगी और सब कुछ एक टेन्योर में होना ऑब्वियसली पॉसिबल तो है नहीं. तो फिर आप किस प्रायोरिटी लिस्ट पे रखेंगे चीज़ों को, अगर इसके बारे में भी वी डिस्कस. राइट. तो गेस्ट हाउस पोर्टल वुड बी द प्रायोरिटी जिसको हम डायरेक्टली BHM ऐप पे लाना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन ये अकेडमी पोर्टल. पर जो मेंटेनेंस पोर्टल वाला चीज़ है, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इट ऑन द ये अकेडमी ओनली अभी कल, क्योंकि उसमें रिफाइनमेंट्स करने बहुत अच्छे हैं अभी. यस.
तो उसका प्लान ये है कि उसको एकेडमिक्स पे रखेंगे, एंड जो मैथ्स वाली चीज़ें वो किसी पोर्टल पे नहीं आई है अभी, एक्सेप्ट द रिवेक वाला पार्ट, तो वो डायरेक्टली भेजना ऐप पे ही दे रहेगा। पहले तो जो चीज़ें नहीं बिल्ड करनी है वो ग्राउंड अप ऐप में ही बिल्ड करेंगे, और जिनमें रिफाइनमेंट्स करने हैं वो ऐड में कितनी जाती है उसके बाद बाद में। तो एसेंशली दैट्स द प्लान। एक बार हमें CSC के साथ भी डिस्कस करना है, क्योंकि मोस्टली हमें उनसे एक्सेस चाहिए होगा डेटा पर, और एक बार वो हो जाए then थोड़े से प्राइवेसी कंसर्न भी आते हैं उसके अंदर कि कितना डेटा प्रोवाइड कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते। The minutes of meeting of any say general board meeting, can that be made public, or can that be issued for all students, any students who are interested? In the constitution, it is already written. Chapter a written statement wherein says that every GBMT MOM, external to the meeting of general body meetings, will be posted on the postal notice books. Here, try to implement that system. Other than that, I think it should also be on the website for residents to easily have access to it. And which is currently there. If you go into the VHM website, you will find the minutes of the meeting or the specific GBM which have been handheld last year. Previous to that, we have not been able to compile them properly, but they are on the VHM DSEC soon November. So we try to compile them this year. थोड़ा सा प्रॉब्लम यदि मिनट्स थोड़े से लंबे होते हैं एंड एक नोटिस बोर्ड ट्रांसफर होता है 2-3 जगह लगाओ कि सब यूजली आके वहाँ पढ़ते नहीं है, तो थोड़ा सा कम्बरसम जाता है सिस्टम। बट इंश्योरिंग एम ओके टेयर ये बोर्ड के पास है, दैट इज अ फीजिबल चॉइस जो हम कर सकते हैं, बट not to make it physically accessible, rather making it more easily available to them is through the means of a website, and they were trying to incorporate that in a better form. सर आपने कहा सर अपनी एसएटी है कि आम PHM की सारी वेबसाइट से इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेनिंग सेशन बनाई गए, एंड अभी तो BHM की 30-11 की प्रोजेक्ट्स भी शुरू होने वाले हैं और कई महीने भी हुए। अब Actually, reps का but meant the keys how से कॉन्वर्टेशन हुआ था, पर ट्रेनिंग सेशन जिसने अपने पुराने सिटीज़ को बुला के उसे पूरी बात और इट्स का नहीं हुआ। टेस्ट कर लियो आगे। लेप्स का मतलब लेप्स के लिए तो रेलिवेंट कम बेस्ट हम BHM सेकेंड के थ्रू ऑलरेडी कोऑर्डिनेट करवा रहे, एंड गिवन तुम लोगों का काम जो होता है वो ऑलरेडी हम डिफाइन देते दे देते, यू जस्ट हैव टू कैरी आउट द एक्शंस। ट्रेनिंग टीचर्स आर नॉट रेलिवेंट फॉर BHM। Actually, over the process of creation of BHM rep जो कि 2021 में ही मैं, if you read the SAC meetings snippets, so हुआ क्या है कि अभी इतना ग्रोथ नहीं है BHM reps की as to work levels कि उनको पता है कि एक्चुअली में काम क्या करना है, एंड देयरफॉर जो सेट ऑफ BHM reps बन रहे हैं वो प्रो कर रहे हैं ओवर टाइम इन देयर नॉलेज, इन देयर एबिलिटीज़। इस साल के मतलब जिस इन मैं BHM rep था शायद मुझे बहुत कम नॉलेज थी आउट द वर्किंग ऑफ THF। जिस साल मैं सेक्रेटरी बना उस साल के BHM reps को ज़्यादा नॉलेज थी इस साल के उससे, क्योंकि वो ग्रो कर रहे थे एज टू देयर नॉलेज एंड एज टू हमें कितना एक्सप्लोर था जो हम आगे फॉरवर्ड कर पा रहे थे। इसलिए ऐसा हम प्लान कर रहे हैं कि अभी सेक्रेटरीज के थ्रू ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर BHM reps पर एज़ कम्पेयर टू BHM rep टू BHM rep, क्योंकि वो वॉज द होती नहीं, क्योंकि फ्रैंकली अभी इतनी स्कोप ऑफ नॉलेज BHM reps में कम होता है जो कि हम सेक्रेटरीज थ्रू ज़्यादा पास ऑन कर सकते हैं, विच इज़ मोर रेलिवेंट टू दैट। इसलिए हमने मेंटेनेंस सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को ये इन्फॉर्म किया हुआ था कि यू टेक अप द थिंग्स विद द BHM rep और उनको आप खुद गाइड करो इंस्टेड ऑफ BHM rep टू। तो दैट इज़ द प्लान। और शायद आप लोग के मेंटल में सेक्रेटरी ने आपसे बात करी होगी रिगार्डिंग द काम, तो मतलब होपफुली होना चाहिए था। मैं एक बार डिस्कस भी करा। Summer breaks and winter breaks, students actually keep their belongings within the hostel, right? तो अब हॉस्टल की तरफ से हम लोग को मेल आता है कि if you do not take if you do not put your things so and so by such a date, strict disciplinary action will be taken. बट फिर इसमें अब जिनके सामान ख़राब हो जाता है, जैसे अभी फ्लैट्स में हुए थे, या फिर किसी का सामान मिसप्लेस हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसमें हॉस्टल को अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, और हॉस्टल ये मेल में कभी नहीं रखता कि वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दिस, यू हैव टू कीप देम एट योर होम प्लेस। ये चीज़ ना कभी मेल में बताई जाती है, मेल में बस कहा जाता है कि यू हैव टू डू दिस अदरवाइज नीड टेक अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन। तो यहाँ पे कुछ हद तक एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट मैच नहीं करता ना, कि स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है या बोला जाता है कि ये करना ही है, और फिर एक अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता। इस पे जस्ट एक करेक्शन कि ड्यूरिंग द फ्लड्स जो डैमेजेस हुए थे वो कवर हुए थे हम लोग टू एन एक्सीड ईच रीफिस। तो एक गिरी एंड गिरनार के जो स्टूडेंट्स थे वो लिस्ट में यह था कि हमारी 80 तक खराब हो जाए, तो उनके लिए कॉम्बिनेशन दिया। सर तो इसमें एक और एक्चुअली था, मेरे हॉस्टल में काफ़ी लोग के सामान चोरी हुए थे, तो हम लोग को बोला गया था कि तुम अपने सामान को कंड्यूस करो, और अगर वो एक बियॉन्ड एंड एक्सटेंड डैमेज होएगा तो ही हम तुमको कंपनसेशन देंगे, हम लोग स्टूडेंट आइटम्स के लिए नहीं देंगे। तो आई फील कि कुछ हद तक मिसमैच अभी भी रहा ही स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ऑफ द पुअर सिस्टम जो स्टोरेज सिस्टम का है।
तो ये इशू अगर डैमेज के लिए रियम्बर्स हो भी जाते हैं, बट स्टिल स्टूडेंट्स हैव टू फेस सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. और अगेन वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्शंस एंड डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स का, तो सबके लिए बार बार पॉसिबल नहीं होता कि वो सामान नया खरीदे. कुछ लोग दूर रहते हैं तो वो सामान लेके भी नहीं जा सकते. तो एक गैप है जो आई थिंक BHM शायद फिल कर सकता है. तो इसके बारे में कुछ कहना चाहिए. स्टोरेज शूट्स और CCTVs लगा सकते हैं बस. आई थिंक उससे पहली बात यू हैव टू टेक द परपिट्रेटर्स. वो सबसे दिक्कत दे रहे हैं. तो पहले आइडेंटिफाई करो कौन चोरी कर रहा. सेकेंड, ये जो चोरी हो रहा उसे तो रिकवर कर पा. थर्ड थिंग है, अगर अभी तक नहीं हो पाए उसमें डेवलपिंग स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है. इसके लिए हमको रिसर्च करना पड़ेगी. सर जैसे स्टोरेज के लिए कोई टोकन सिस्टम इम्प्लीमेंट करना क्या ये बड़ा ऑप्शन नहीं रहेगा? दी स्टूडेंट्स एक्चुअली गेट इशू टोकन फ्रॉम द केयर टेकर व्हेन दे आर प्लेसिंग देयर गुड्स की आई हैड 3 bags, 1 bed sheet or 1 bed, 2 pillow covers or 2 pillows and then with using my things. एक एक्चुअली मेस का एक एक्चुअली हॉस्टल का केयर टेकर या फिर तो एक एग्जीक्यूटिव चेक कर रहे हैं सो दैट द फेलिसिटेशन प्रोसेस इज ईजियर. दिस इज गुड आइडिया. मतलब एक ही व्यवस्था काफ़ी लोग न्यूज़ आइटम्स छोड़ देते हैं अपने आप दिखाओ. इंश्योर है कि वो प्रॉपर कार्डबोर्ड बॉक्सेस में होता कि उसकी मार्किंग्स अगर 1 2 3 नंबरिंग हो रखी तो 1 2 3 लेके जाओ, विच इज़ अ वेज फॉर्म कर सकती है. मतलब वी हैव नॉट थॉट अबाउट इट राइट नाउ, बट कंसिडर सजेशन में पता है प्रॉब्लम है, बट वी हैव नॉट डेट विद राइट नाउ, बट दिस इज अ गुड कंसिडर. Or sir, secondly, I want to ask about when we talk about the hostel infrastructure, there are problems arising at every level. Like one such problem which I actually see in a lot of hostels is the laundry system. So you talk about a centralized laundry system in your SOP. How do you think that it can be realized, and what sort of time frame of you think that we should expect such things? Well, such things take a lot of time in this system. Why I proposed it was because let's say we have certain delicate truths that cannot be washed in washing machines, and the parent will be, I don't think he has the bandwidth to include all such items. For example, I had a cloth where a bit of paint was smeared on it, and what was I expecting? To call the Adobe and get it off. But given they do not have dry washing there, a certain laundromat which is running inside Karapura, now we're planning for a salon there, but in the laundromat they would have had dry cleaning, and such problems could be easily handled for the students. That was the idea behind having a laundry system, circular laundry system. So one question. In different hostels, there comes a dhobi like twice a week or something. So these list of vendors or these list of dhobis are generally issued by the BHM, or are they approved by the BHM? They're similar in scheme. Alright. So does BHM has any sort of say or any sort of suggestion ability to actually recommend that a dhobi comes to every hostel? Because right now many hostels don't have a dhobi or a dhobi system. Yes, agent can. But as a present system, we do not have the facilities. What happens is there's a cluster of 4 to 5 hostels in which a particular Dhobi contest match. So we are trying to expand that model as Somik mentioned to maybe have a central system in which we recommend which particular Dhobi goes to which hostels, and then we have them consolidated. Having a laundromat type of system will not work in this case, since when the laundromat was established, there were very less machines in the hostels. But now, since the number of machines have increased dramatically, having a different laundromat system would not be feasible for the people who will be operating them in the long term. And therefore, we will be consolidating them positive wise rather than at cycle level. सर एक्सपैंड करना चाह रहा है इसी वो जो बुक सिस्टम है, या फिर आप एक सेंट्रलाइज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिक की वो स्पेसिफिक टाइप के कबूल जो मतलब पेन दिया गया है, तो कुछ ऐसे बॉक्स के लिए? हाँ, मतलब एक्चुअली क्या होता है, 2 चीज़ होती हैं. एक होता है काफ़ी लोग आर नॉट कंफर्टेबल विद जस्ट द लॉन्ड्री भी हीरा, मतलब प्रेस नहीं हो रही ना आपके आयरन नहीं हो रहा है, या फिर बहुत डेलीकेट डो डिसीजन मेंशन किया कि उसके कपड़े खराब हो. सर वो भी प्रेस सिस्टम है हाँ, तो प्रेस राइट एक्सैक्ट. तो आप जब धो के आ रहे हो वॉशिंग मशीन से, तब तो आपके सिर्फ धो के आ रहे हैं, नहीं तो तब तक आपकी प्रेस नहीं हो रहा है. सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉपर्ली पूरा अपना सिस्टम चाहिए होता है कि आप मेरे बुल के आ जाएँ, प्रेस हो जाएँ, राइटिंग चाहिए तो मेरे रिपोर्ट राइटिंग हो जाए, जो भी इस पर रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलरली. तो उस चीज़ को लाने के लिए इंटू सिस्टम हम ये प्लान कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, बट नॉट थ्रू एक पर्टिकुलर वेंडर की जो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर वॉशिंग मशीन सेटअप है, लॉन्ग पैट में हुआ करता था. और वी आर ट्राइंग कि 4-5 लॉन्ड्री वाले हो जो कि अपने अपने हॉस्टल ऑपरेट करे, जाकर हॉस्टल्स, लेकिन उनको इंस्टीट्यूट रेकमेंड करे, ना कि
वो अपने अपने उस पर ऑपरेट कर दे रहा है एज पर देयर ओन विश, कि उनकी प्राइसेस रेगुलेटेड हो, कि किस प्राइस पे वो एक शर्ट लेके जाएंगे, किस प्राइस पे वो एक कोट लेके जाएंगे। जैसे मेरे शूज़ में ट्रैकिंग कराने होते हैं वक्त तक, तो एक वेंडर आता है कारापुर में जो कि लेके चले जाता है, ही कम्स थ्राइस अ वीक एंड ही डज दैट। बट प्रॉब्लम है कि वो चीज़ रेगुलेटेड नहीं है, अभी स्टूडेंट बुक्स के प्राइसेस रेगुलेटेड नहीं है, देयरफॉर अभी वो एक्सपेंसिव चीज़ें कर सकता है। बट व्हेन वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इनटू अ सिस्टम कि वो चीज़ रेगुलेट हो जाए, सब्सिडाइज हो जाए, स्नाइड में सब सब्सिडाइज है, जब उस लेवल पर मिनिस्ट्री ले आएगी देन वो चीज़ सब्सिडाइज होकर रेगुलेट हो जाएगी अंडर दैट इंस्टीट्यूट। अभी वो अंडर द इंस्टीट्यूट नहीं है, वो भी प्लान कर रहे हैं अंदर एट द असल तो अब एक इशू था क्योंकि मेन रिलेटेड ज़्यादा है कि वाटर के इशूज़ पर भी ज़्यादा अदर इशू कि पानी वॉशरूम्स में नहीं आ रहा या फिर किसी और जगह पे नहीं आ रहा, नहाने के लिए नहीं आ रहा, पीने का पानी भर बार नहीं आता है। और ये सब चीज़ें क्या इज़ अंडरस्टैंडेबल इफ़ दे हैपन से वंस और ट्वाइस अ मंथ, बट इफ़ इट इज़ समथिंग वेरी कॉमन, तो ये एक बेसिक लेवल ऑफ कम्युनिटीज़ जो स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो इसके ऊपर क्या BHM कुछ कर सकता है? हाँ, तो बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक वाटर ट्रैकिंग पे एक अलग का करी, एक है सॉन्ग वाटर का। इसकी जो अपना नॉर्मल वाटर होता है उसकी जब भी वजह से प्रॉब्लम आती है कोई, जनरली जो होता है ना, चार पाँच विंग्स होते हैं, अनपॉसिबल नहीं, 5-6 भी जाते हैं। सो एक ऑर्डर होता है, इसमें पानी खत्म होना शुरू होता है। सो क्योंकि टैंक फिल करा से किया पूरा पॉट होता है कि इसी प्रोसेस में वो कम हो गया, क्योंकि क्या होता है आपका लास्ट वाले विंग कभी निकल आता है, एंड वर्षा होता है, तो गार्ड यदि प्रॉम्प्ट नहीं हो रही, उसे पता नहीं करता ही कब खत्म हो गया पानी, एंड देयरफॉर आपको कॉल करना पड़ता है नीचे टू टेल द गार्ड खत्म हो गया, एंड वो कॉल करता है एंड वो चीज़ ऑन हो जाती है, तो वहाँ से पानी आने लग जाता है। दिस इज़ वन वे, और वो चीज़ हो जाती है, दैट इज़ नॉट बहुत बड़ा प्रॉब्लम इफ यू लुक एट इट। बट जो दूसरा होगा दैट इज़ ड्रिंकिंग वाटर द प्रॉब्लम, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़, क्योंकि आपका जो ये मोटर ऑन वाली चीज़ है, ये ड्रिंकिंग वाटर में नहीं हो पा रही है अभी हमारी, क्योंकि रात को अगर कोई चीज़ पानी कम हो जाता है तो ड्रिंकिंग वाटर रिफिल नहीं होता है। देयर स्पेसिफिक टाइमिंग जिसमें ड्रिंकिंग वाटर रिफिल होता है। एग्जैक्टली किस टाइमिंग पर होता है, कुछ शॉर्ट्स होते हैं उसके, वी गेट इन टू इट, मतलब वो नहीं को पर्टिबल टू इट। बट अभी हम उस चीज़ से ही वर्क करेगा कि मैं शायद परसों की इस प्रोजेक्ट के बाद दी थी मेरे 2 मिनट स्प्रेड पीस से, एक गर्ल्स हॉस्टल देख रही है, एक हॉस्टल देख रहा है, तो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट एग्जैक्टली किन टाइम पे वो होता है, एंड वी आर ट्राइंग टू पुट इन 2 more वर्कर्स इन टू इट जो कि अराउंड द क्लॉक उस RO वाटर को चला पाए। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। बट अगर आप ड्रिंकिंग वाटर नॉर्मल वाटर बात करते हो, आपकी वॉशरूम से मांगी आ रहा आपका, सो आई वुड रिकमेंड कि आप मेंटेनेंस सेक्रेटरी से कार्ड डेस्क का नंबर ले लो एंड यू कॉल हिम अप कि आपका फिल नहीं हो रहा है, और वो 10-15 मिनट में रिकल दे जाएगा दैट वाटर। ओके कि BHM में जब हम लोग को इश्यूज आते हैं EDHM से स्पेशली, या फिर EDHM ऑफिस में हम मेल करते हैं, या फिर आप इंफ्रा यूनिट को मेल करते हैं कि दिस इज़ समथिंग विच वॉज नॉट केटर्ड टू, और दिस इज समथिंग वी आज, और क्या कोई अपडेट है सर, तो वी नेवर गेट एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द मेल्स। तो देर इज़ अ गैप बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड द सॉर्ट ऑफ things they deliver to us and the sort of accountability they don't fulfill that, right? तो क्या इसके लिए BHM कुछ कर सकता है? We expect the admin to be more responsible for the students. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें रिप्लाई अच्छा दे एंड जल्दी दे। हम इवन हम कभी कभी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जहाँ हमें वो एक्सेंटली प्रॉम्प्ट रिप्लाईज दे दे। एंड आई थिंक BHM लास्ट टाइम ठीक एजेंडा था where we put up this calendar जहाँ पे आप बोल रहे थे कि we expect more prompt replies from the administration. So there is scope of improvement for the administration there. Also expect the director to be involved in such cases जहाँ पे the Ds and the SCIDs are not exactly fulfilling the roles in the way the students expect them. There should be conversation between the administration and the students direct. सर तो मेस रिलेटेड इशूज़ के बारे में अगर कुछ पूछूँ, से वो इम्प्लीमेंट होता है तो विल आई गेट स्टैगर्ड या मील वाइज वे से मैंने मंडे को डिनर नहीं किया, वेडनेसडे को ब्रेकफास्ट नहीं किया, और सैटरडे से आई डिडंट डू अ लंच, तो फॉर दीज 3 days कैन द वेट वी फाइंड फॉर सिमिलरली या फिर मील लंच वेट नहीं हो सकते? तो देखो तुम्हारे क्वेश्चन है, आई कैन डिवाइड द 2 parts। वन है QR सिस्टम, जैसे टोकन बेस हो गया, जैसे भी हो गया, जो आए बायोमेट्रिक जो स्पिन के ऊपर से ओके, क्योंकि वी आर टेस्टिंग बायोमेट्रिक इन 3 hostels। और दूसरा चीज़ हो गया तुम्हारा प्रीपेड्स। तो मैं बी की पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दोनों चीज़ कैसे है। जैसे QR और बायोमेट्रिक में चीज़ेस वी आर ट्राइंग टू मार्क द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स जो टाइमिंग फैसिलिटी लेवल करते हैं अपने मैसेज में। तो उससे मेन एडवांटेज हमें ये होता है, सिस्टम को ज़्यादा रोबस्ट करता है, इस सेंस में हमें पता होता है कि कौन अवेल कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और हमें डेटा मिलता है जिस डेटा के ऊपर हम काफ़ी एनालिसिस करके वो स्टेज मिनिमाइज़ कर सकते हैं, खाने की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं।
रिबेट्स का रोबस्टनेस बढ़ा सकता है इन केस, जैसे अभी का अगर मैं रिबेट का प्रोसेस पे इंक्लूड करूँ, जैसे मान लो ऑनलाइन रिबेट पर आप पहले ऑफलाइन होता था, आजकल तुम ऑनलाइन रिबेट्स करते हो और उस रिबेट के फिर मैच मैनेजर अप्रूव करता है। सिंस तुमने ऑनलाइन भर दिया तो किसी ने देखा नहीं है किसने भरा है, और तुम मान लो मैच में खाने भी चले जाओ तो किसी को पता नहीं चलेगा, एंड एसेंशियली कोई और पे करता है तुम्हारे उस दिन क्या खाने के लिए, वो चीज़ें लूप हो जाएगा अपना। सो वी आर ट्राइंग कि उस चीज़ को हम गैप को हम क्लोज करें। या सो क्यूआर सिस्टम है तो अपना काफ़ी इनिशियली 4-5 हफ्ते में चल रहा, आई थिंक 2-3 मंथ्स पहले से, किसी में 2-3 मंथ्स पहले स्टार्ट हुआ, किसी में 4-5 मंथ्स पहले स्टार्ट हुए। उदयगिरी में बहुत पहले से चल रहा था, अराउंड 1.5 years पहले से। रिसेंटली लास्ट वीक वी ट्राइड टेस्टिंग इट आउट इन नियरली ऑल ऑफ द हॉस्टल्स एंड द टेस्ट वाज प्रीटी सक्सेसफुल। कहीं कहीं हमें डेटा का इशू हुआ, कहीं कहीं हमारा सर्वर ओवरलोड हुआ था। सर्वर एक्चुअली इट इज होस्टेड इन अपना IIT सर्वर्स, और जो मेन उसका डिज़ाइन है, इट वॉज डिज़ाइन बाय आदित्य सिंह सर लास्ट ईयर के वो डेप्टर POC। सो ये हो गया क्यूआर सिस्टम का। बायोमेट्रिक का गिरनार में हो रहा है, गिरनार में बहुत पहले से चल रहा था, एंड नीलगिरी में रिसेंटली एक अलग डिवाइस पे टेस्टिंग हो रही है, एंड उस वक्त में हम कुमाऊं में भी टेस्ट कर रहे हैं विद इन बिफोर 9 years हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पर। उसके बाद आएगा तुम्हारा रिबेट का सिस्टम। सो रिबेट का एसेंशियल टारगेट ऐसा होता है कि जैसे मान लो तुम 2-3 दिन नहीं रहोगे नेक्स्ट वीक, तो तुम अभी रिबेट कर दो और उस 2-3 दिन का तुम्हारा मेस का खाने का चार्ज ना आए, ठीक है। एज ऑफ नाउ सिस्टम में काफ़ी लिमिटेशंस है 2-3 रीजंस की वजह से। एक है कि हम चेक नहीं कर सकते किसने रिबेट किया है, तो हम क्या करते हैं उसमें एक क्लॉज लगाते हैं, इफ समबडी इज टेकिंग रिबेट ही ऑल्सो इज टू मेक श्योर कि वो हॉस्टल में आ रहे, क्योंकि इफ कोई हॉस्टल में है तो वी कांट सी उसने खाना खाया है या नहीं खाया है, जो चेक करने के लिए हम एक्चुअली सी अटेंडेंस सिस्टम लगाते। दूसरा फैक्टर आ गया उस पर कि हम नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे आए, मान लो सपोज कोई जस्ट जितने भी बीटेक स्टूडेंट हैं वो हम एज्यूम करते हैं मोस्टली पढ़ने के लिए आए, सो वी डोंट वांट देम टेकिंग बहुत लॉन्ग टाइम का ब्रेक कि 15 दिन तक कोई रिबेट ले रहा है। तो इसमें से रिबेट के लिमिट्स भी होगा कि मिनिमम हम 2 दिन ले सकते हैं और मैक्सिमम 9 days द स्ट्रेच, उसके बाद फिर 5 दिन का गैप देना पड़ता है, उसके बाद तुम अलग से ले सकते हैं। इन केस देयर इज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फिर उसका अलग से अप्रूवल ले सकते हो फ्रॉम वार्डन या एनीचा, तो फिर अप्रूव होगा। तो रिबेट्स का जैसे तुम पूछ रहे हो अभी तो यही है मेन क्लॉजेस, बट हाँ विल ट्राई कि अगर हमारे पास एक रोबस्ट मैकेनिज्म सिस्टम है, मतलब मैकेनिज्म है जिससे हम वो मॉनिटर कर सके कि कौन खा रहा है या नहीं खा रहा है, तो हम ट्राई कर सकते हैं उसको और एक्सेसिबल या मोर फ्रीक्वेंट बनाने के लिए कि सपोज आई वांट कि मैं परसों ना खाऊँ या कल ना खाऊँ, तो सपोज आज मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ और मैं बता दूँ कि कल मैं नहीं खाऊंगा, तो कल पूरे दिन के लिए मेरा QR लॉक हो जाएगा, QR या बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जो कि लॉक हो जाएगा, एंड आई वॉन्ट बी एबल टू एक्सेस द मेस इवन स्टेइंग इन द हॉस्टल, और फिर मेस का खाना चार्ज लो। जो तुम्हारा इन डेप्थ पार्ट था कि उसमें आप स्टैगर्ड रिबेट्स या मील वाइज रिबेट ले सकते हैं क्या, उसमें थोड़ा इशू ये आता है कि जैसे हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि रिबेट के लिए पहले कोई बतावे। इसका मेन रीज़न ये होता है कि जैसे मुझे खाना दल बनाना है तो आई वुड बी ऑर्डरिंग द रॉ मटेरियल्स 1-2 दिन पहले ही मेरे पास चाहिए होगा, और ऐसा जनरली नहीं हो पाता अभी कि हर दिन सप्लाईज आ रहा है, एक दिन में 2-3 दिन के लिए आता है सप्लाईज, ठीक है। सो अगर तुम मुझे पहले नहीं बताओगे, सपोज कंसिडरिंग 400 लोगों का हॉस्टल है तो 10 लोग रिबेट पे होंगे, एज्यूमिंग सपोज 10 लोग रिबेट पे हैं, तो मुझे 10 लोगों का कम खाना बनाना पड़ेगा, और अगर मुझे ये चीज़ पहले नहीं पता तो वेस्टेज नहीं। तो एसेंशियली वेस्टेज होगा, तो किसी को बियर करना पड़ेगा, तो बाकी स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। सो फॉर द मील वाइज विल हैव टू फिगर आउट पूरा दूसरा स्ट्रेटेजी या कोई कैसे हम प्रपोज कर सके, बट हाँ हमारा इनिशियल टारगेट ये है कि एक बार रोबस्ट हो जाए रिबेट का मैकेनिज्म विल बी इंक्लूडिंग फ्लेक्सिबल रिबेट्स। सो क्यूआर सिस्टम में ही क्वेश्चंस थे मेरे। इन जनरल स्टूडेंट्स को कंसर्न्स ये आए थे कि अगर मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है तो क्या हुआ, या फिर मेरा फ़ोन रूम में है या मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, कैन आई नॉट एक्सेस द फूड। इनसे का बायोमेट्रिक क्या वो लॉन्ग टर्म में वो इम्प्लीमेंट नहीं होएगा, मतलब दैट इज़ द सजेशन आई गॉट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई टॉक्ड अबाउट। मे बी शायद इनिशियल स्टेजेस में तो फिर जस्ट हमें क्या वो लॉन्ग टर्म प्लान भी करिए सर। यस, हमारा लॉन्ग टर्म प्लान जैसे तुम बोल रहे हो कि कुछ तो दिक्कतें आई है, जैसे किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी का डिस्चार्ज हो गया या ड्यू टू सम रीज़न उन पर QR ही नहीं गया सपोज, फिर भी इस चीज़ के लिए हमारे पास मैकेनिज्म्स है कि QR कैसे लाना है, कैसे QR क्रिएट करना है, बट थोड़ा टेक्निकल हो जाती है, हम एस मैनेजर्स उस चीज़ को इतना प्रेफर नहीं करते उस सेंस में। तो ऑन द लॉन्ग टर्म हमारा भी टारगेट यही कि बायोमेट्रिक पे शिफ्ट करना है, क्योंकि बायोमेट्रिक इस 2 चीज़ पे एडवांटेज, वन इज़ हाईली सिक्योर मोर देन QR, भी QR में इसको सेंड भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ है उस पर कि वेरी वीक, मतलब जो उसके 2 टाइप के सेंसर्स आते हैं, ऑप्टिकल होता है, एक कैपेसिटिव होता है, कैपेसिटिव लाइक मिली सेकेंड्स में स्कैनिंग होती है उस, तो इवेंचुअल टारगेट अपना हुआ ही है कि बायोमेट्रिक पे शिफ्ट करना।
सर एक नॉन में से है वो काफ़ी किलो का इंटरेस्ट रहा है कि मतलब वो अब मिल भी नहीं है स्टूडेंट्स को, आप उसकी देख करना चाहिए। यार देखो, नॉन मिसिंग का मैं तुम्हें थोड़ा अगर बैकग्राउंड बताऊँ, उसके 2-3 रीज़न होते हैं। एक रीज़न नॉन मिसिंग का बहुत ज़्यादा इसलिए पुश हो रहा है कि मेस बिल बहुत ज़्यादा है, तो पीपल वुड प्रिफर कि यार मेस बिल इतना ज़्यादा है, मैं नहीं पे कर पाऊँगा, या मुझे उस मेस बिल के अकॉर्डिंग खाना जस्टिफाइड नहीं लग रहा। तो ये इन रीज़न होता है जो लोग अवेल करना चाहते हैं। तो दूसरा होता है कि किसी को बाहर, मतलब वो जनरली हॉस्टल्स में यहीं रहते हैं या बाहर ज़्यादा जाते हैं, तो सबका किसी का अलग अलग रीज़न होता है। लास्ट ईयर हमने इस पर डिस्कशन भी किया था कि नॉन मिसिंग इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या। उस चीज़ पे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी नेगेटिव था कि नहीं करना है ये चीज़। थोड़ा उनका ये भी पर्सपेक्टिव था कि IIT हॉस्टल मैसेज आर मोस्टली लाइक अ कम्युनिटी मेसिंग एटमॉस्फेयर, सो वी डोंट वांट कि कोई इंडिविजुअली बाहर खाए या ये खाए कैसे खाए। बट हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हम ला सकें नॉन मिसिंग के रिगार्डिंग, विल डेफिनेटली पुश फॉर इट ऑल्सो फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन साइड कि वो लोग इसको एक्सेप्ट करें या हम एक कॉमन प्रपोजल उस पर निकालें। इस पर अभी जो मेन हार्ट मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं ये क्या, अटेंडेंस बेसिकली मतलब आइडेंटिफिकेशन का, कि अगर मान लो किसी ने बोल दिया आई एम ऑप्टिंग फॉर नॉन मिसिंग, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो खाना नहीं खा रहा, क्योंकि एज ऑफ नाउ हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं है चेक करने का कि कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा। वो एक हर्डल है। दूसरा है फिर अभी जो सिस्टम है उसमें वो एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट नहीं खा रहा है तो उसका मतलब अगर कोई नहीं भी खा रहा है वो भी मेस बिल पे कर रहा है। सो एसेंशियली जो टोटल कंजम्पशन है हॉस्टल का वो सब स्टूडेंट्स पे डिवाइड हो रहा है। तो जो स्टूडेंट नहीं खा रहा है ही इज एट अ लॉस, जो स्टूडेंट खा रहा है ही इज एट अ प्रॉफिट, क्योंकि उसका खाना खाने का कॉस्ट कोई दूसरा भी बियर कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। उस चीज़ पे हमें थोड़ा ये देखना है कि अगर हम कम्प्लीटली नॉन मिसिंग पे चले जाए तो वही होगा कि जो स्टूडेंट्स खा रहे हैं उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो स्टूडेंट्स नहीं खा रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है। बट कहीं कहीं ये मॉरली सही भी है कि आई शुड पे फॉर माई ओन फूड, सम अदर्स शुड नॉट। बट इसको हमें थोड़ा वेस्टेज मिनिमाइज करने के बाद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वेस्टेज मिनिमाइज होगा डायरेक्ट रिडक्शन होगा मेस बिल पे। फिर अगर मैं नॉन मिसिंग लाता भी हो तो थोड़ा इंक्रीज होगा, पर नेट वी वन कि उस रेंज के अराउंड ही रहेगा जो मेन बिल। तो वो है हमारा मेन पर्सपेक्टिव। उस पर अभी सर्वेज चल रहे हैं, किसी किसी हॉस्टल में हमने बेटा कैलकुलेट किया कि कितना इंक्रीज होगा मेस बिल। इट्स अराउंड मतलब कहीं कहीं भी इट्स अराउंड 1.35 टाइम्स हो जाएगा, कहीं कहीं 1.2 टाइम्स, कहीं कहीं 1.4 टाइम्स। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वहाँ पे ये इशू कम आती है, क्योंकि हाँ यस, क्योंकि नंबर ऑफ जो वर्कर्स चाहिए होता है और जो वेस्टेज होता है दे आर मोस्टली इन एब्सोल्यूट टर्म्स। अगर छोटा हॉस्टल है उसमें तो 20 kg का वेस्टेज हो रहा है, बड़े हॉस्टल में भी 25 kg का वेस्टेज होता होगा। सो वेस्टेज का कॉस्ट डिवाइड होता है, और ऑल्सो जो वर्कर्स, अगर मान लो छोटे हॉस्टल में 30 वर्कर है तो डबल जो नंबर ऑफ अगर स्ट्रेंथ होता है तो 40 वर्कर्स 45 में हो जाता है, तो कॉस्ट डिवीजन से भी इफेक्ट पड़ता है। एज ऑफ नाउ वी आर मोस्टली फोकसिंग ऑन द अटेंडेंस मतलब मॉनिटरिंग कार्ड फॉर डेटा, फॉर वेस्टेज मिनिमाइजेशन एंड फॉर ऑथोराइज एक्सेस। एक बार ये चीज़ सॉल्व हो जाए विल बी मूविंग ऑन टू रिबेट्स, एंड आफ्टर रिबेट्स विल बी ट्राइंग फॉर नॉन। सर तो और इशू जो ऊपर देना रिलेटेड क्यों इंक्लूजन ऑफ विंडोज़, काफ़ी चीज़ें अभी तक हॉस्टल में नहीं बनती है। नॉन वेज फूड हॉस्टल में नहीं बनता है, वो वेंडर्स से आता है, या फिर मिठाइयाँ हॉस्टल में नहीं बनती है तो वेंडर्स से आता है। तो एक क्वालिटी चेक्स इन वेंडर्स पे कैसे होता है, ये वेंडर्स अप्रूव कैसे होते हैं, और ओवरऑल इन वेंडर टू वेंडर्स कॉस्ट डिफर्स करता है। तो स्टूडेंट इन मेडिकली हैज़ टू पे मोर और वे यू पे लेस देन अ स्टूडेंट इन कुमाऊं फॉर द सेम सॉर्ट ऑफ फूड। तो वो जो फूड क्वालिटी क्या ओवरऑल इंस्टीट्यूट रेगुलेटेड हो सकती है, या फिर इसमें कुछ BHM ला सकते हैं सर? मैं बताता हूँ। जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि एक आइटम जैसे वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं हो सकता है या किन्हीं में लेस कॉस्ट पे होगा, वो जनरली नहीं होता। जनरली ऑन हॉस्टल्स आर फ्री टू ऑर्डर फ्रॉम एनी वेंडर लाइक। अब वेंडर का सिलेक्शन या क्वालिटी चेक किस फॉर्मेट में होता है कि क्वालिटी चेक्स का रिव्यू हम जनरली हॉस्टल से लेते हैं। सपोज हमारा अप्रूवल का प्रोसेस में कुछ लोगों को बोलाता हूँ, देयर इज अ सप्लाईज फाइनलाइजेशन सेट। सो जो वेंडर भी ऑन बोर्ड करना चाहते हैं कैंपस में, दे सेंड देयर कोटेशंस, दे गिव देयर प्रपोजल्स एंड इट इज डिस्कस्ड इन द मीटिंग। और इस मीटिंग में EDHM रहते हैं, हमारे स्टूडेंट बॉडी के मेंबर्स रहते हैं, देयर आर वार्डन्स एंड देयर इज द यार। सो वी डिस्कस कि प्राइस सही है, जो आइटम्स वो सप्लाई कर रहे हैं वो सही है, उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या हो सकता है उनसे हमारी पहले कभी इंटरेक्शन हुई है या पहले उन्होंने हमें सप्लाई किया है। तो ये सब कंसिडरेशंस के बाद हमको या तो अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। वो जनरली ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर्स अप्रूव हो, क्योंकि उससे कंपेटिटिव प्राइसिंग होती है और क्वालिटी भी ऑन एवरेज इंप्रूव करती है। ठीक है, सो एक बार वहाँ से अप्रूव होता है, उसके बाद ऑल हॉस्टल्स आर फ्री टू ऑर्डर जिससे भी वो चाहे।
आइटम्स की थोड़ी इशू है कि कुछ कुछ आइटम्स अप्रूव नहीं होते या कुछ कुछ आइटम्स का प्रपोजल हम पे नहीं आता, उस चीज़ को हॉस्टल लेवल पे ना कोई बना सकता है, फिर वेंडर से भी ऑर्डर नहीं कर पाते। कुछ दूसरे मेथड्स हैं जिनसे हॉस्टल्स किसी किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, बट या इसके लिए विल ट्राई कि हम और भी वेंडर्स को इंक्लूड करें। वेजिटेबल्स में बड़ा ये इशू है कि अलॉटेड रहता है स्पेसिफिक हॉस्टल्स जिससे वो मंगवा सके, जो तुम शायद इशू बोल रहे हो कि ऑफ द हायर कॉस्ट, उसका इस बार से हम ट्राई करेंगे कि वो भी हम मतलब डिसेंट्रलाइज कर दे फुल्ली कि हॉस्टल लेवल के वो ऑर्डर कर सके। मतलब वेजिटेबल फ्रूट्स बात सब कुछ अपना वेंडर चूज कर। चिपर वेंडर पे अप्रूव हो गया है, तो फिर उसके बाद अब कैसे, मतलब क्या क्वालिटी चेक होता है कि वो जिस टाइप के इंग्रीडियंट्स ला रहे हैं, वो जिस तरीके से खाना बना रहे हैं, क्या वो चेक हो रहा है? हाँ, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी भी हो रहा है, मतलब मत वो कहीं से चेक हो रहा है? उस चीज़ का क्या है कि सेंट्रलाइज कुछ हम मैकेनिज्म नहीं रखते इन जनरल, अनलेस स्टूडेंट लेवल से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, हॉस्टल से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं, वो चीज़ प्योरली डिसेंट्रलाइज है टू द लेवल ऑफ मेस से कि मेस मैनेजर हॉस्टल के रेसिडेंसी हुए। अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि ये खाना मुझे सही नहीं मिल रहा, यू कैन डायरेक्टली कंप्लेन टू योर मेस से कि या मेस मैनेजर ऑल्सो DG मेस ADHM किसी लेवल पे इन कर सकते हो, बट इनिशियली हॉस्टल लेवल से करना होता है ताकि एक स्ट्रक्चर मेंटेन, ठीक है। और उस चीज़ पे मान लो जेन्युइन तुम लोगों के पास एविडेंस ही मिल गया, तब तो वी ट्राई कि हम वार्निंग इशू करें, जो लास्ट सेमेस्टर हुआ भी था। किसी स्नैक्स एंड स्वीट्स वेंडर्स का कॉस्ट काफ़ी हाई था, तो कॉस्ट तभी आता इन रिस्पेक्ट टू जो क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से हमने वार्निंग्स भी निकाले थे कि प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ द इशू, इफ दे रिजॉल्व नहीं होता वी मे बी डिसबारिंग यू या वी मे बी सस्पेंडिंग द सर्विसेज। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। हाँ, बट इस चीज़ पे मेस सेकीज एंड मेस मैनेजर्स को थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। मतलब अनऑफिशियल लेवल पे कहीं कहीं क्लस्टरिंग भी हो जाती है वेंडर्स की, सो मेस मैनेजर्स मोस्टली एक ही वेंडर को प्रेफर करते हैं। उसके कुछ जेन्युइन रीजंस भी होते हैं, क्वालिटी कंसर्न्स होते हैं, इवन दो कॉस्ट हाई रहता है, वो सब भी इश्यूज होते हैं। बट इन जनरल मतलब मेस सेकी इज फुल्ली एम्पावर्ड। अगर एज अ रेसिडेंट तुम्हें कुछ भी इशू होता है, यू कैन डायरेक्टली रेज इट टू योर मेस सेकी और वी कैन ही और शी कैन टेक इट फॉरवर्ड। सर मेस मैनेजर अगर अब उनका मेसिंग होती है तो उनके मेस स्टाफ ट्रेन है, बट हमारे जो नॉर्मल है वो नहीं है ट्रेन, तो आपको नहीं लगता कि उनकी ट्रेनिंग करा देनी चाहिए? ना ऑल्सो हर्ड कि पहले कभी BHM की नीड्स में ये पॉलिसी रहा है कि उनकी ट्रेनिंग करवाने के लिए बट मना कर दिया गया था, तो मैं इसको थोड़ा बेहतर फ्रेम करता हूँ। जो हाइजीन वाली चीज़ तुम बोल रहे हो वो कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं भी है, नॉट टू द एक्सटेंट कि मतलब उससे किसी का हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है। बट या डेफिनेटली मतलब जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन होनी चाहिए कंसिडरिंग एन IIT दिल्ली मेस, वो कहीं कहीं लैक करती है, दैट्स डेफिनेट। और दूसरी जो चीज़ तुम बोल रहे हो, जो ट्रेनिंग वाली चीज़ डिस्कस हुई थी, वो मना नहीं की गई थी। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जैसे हमारा टारगेट था दैट वाज मोस्टली फॉर स्वीट्स एंड स्नैक्स, हम पुश कर रहे थे फॉर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ स्वीट्स एंड स्नैक्स, क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट रिडक्शन होती है और फिर मतलब हम अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कहीं मीठा ज़्यादा करना है, कुछ दूसरा स्नैक करना है, दूसरा स्वीट करना है। तो वी प्रपोज कि हर हॉस्टल से एक या दो वर्कर्स को नॉमिनेट कर दे फ्रॉम मेस मैनेजर साइड और फिर उनको एसेंशियली ट्रेनिंग प्रोग्राम पे डाले, जिससे वो फिर वो स्किल बाद में यूज़ कर सके एंड उस पर फिर उनका पे बैंड भी इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे जो भी डेली वेज वर्कर होते हैं उनके 3 होते हैं, एक अनस्किल्ड होता है, एक सेमी स्किल्ड होता है, एक स्किल्ड होता है, और उन तीनों के पे बैंड्स अलग होते हैं। सो वी आर टारगेटिंग कि अगर मान लो कोई अनस्किल्ड है फिर वो मिठाई बनाना सीख जाता है, देन वी कैन पे हिम विद द स्किल पैन, इवन दो लेबर चार्जेस आएंगे उस पर, बट जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो रिडक्शन से नेट बेनिफिट ही होता है उस चीज़ को। बट हाँ, ये चीज़ जो तुम बोल रहे हो वैसे उसमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आई वुडंट से कि वो हाइजीन में है या क्वालिटी में है। ट्रेनिंग का डेफिनेटली इशू है जिसकी वजह से खाने की क्वालिटी में इफेक्ट आता है। दूसरा चीज़ तो ये भी है कि प्रोफेशनलिज्म जो काफ़ी लैक करता है BHM स्टाफ, एंड नॉट जस्ट द स्टाफ, मतलब पूरी BHM के स्ट्रक्चर में ही वो इशू है। एंड वी आर ट्राइंग कि वो जितना रिजॉल्व हो जाए हमारे टेन्योर में, वी ट्राई एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट टेन्योर वी शुड डू कंटिन्यू, बिकॉज ये छोटी चीज़ नहीं है, मतलब ये पूरी कंटिन्यूइंग चीज़। सर मतलब प्रोफेशनलिज्म तो मतलब हम सो बहुत ऊपर लेवल से ले जा रहे हो, बट अगर हम एक बेसिक अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दे देंगे या फिर एक स्टैंडर्डाइज तरीके से मतलब सारे हॉस्टल्स के स्टाफ को सिखा देंगे, रेसिपीज थोड़ी सी मतलब ठीक हो जाएंगी, तो फिर इन जनरल जो वो फ्लक्चुएशन किसी हॉस्टल का खाना अच्छा है किसी का खराब है, तो मेनली शायद वो थोड़ा बैलेंस आउट हो सकता है। अगर तुम ये चीज़ इसके साथ लिंक करो कि किसी हॉस्टल का खाना खराब है, किसी हॉस्टल का खाना अच्छा है, दैट्स नॉट मोस्टली साप्ता स्किप, उस पर काफ़ी चीज़ें और इफेक्ट करती है, ठीक है। उसमें जैसे अगर मैं फ्रैंकली बताऊँ, कैलाश का अगर खाने का मतलब कैलाश का मेन्यू और शिवालिक का मेन्यू अगर मैं सेम करता फिर भी कैलाश का कॉस्ट कम है,
सेम मेन्यू पे, मतलब Same. मैनेजर्स लेवल पे मेस मैनेजर्स पे डिफरेंस आता है, स्टूडेंट लेवल पे भी डिफरेंस आता है. मतलब अगर तुम ट्रेंड देखोगे बॉयज हॉस्टल्स और गर्ल्स हॉस्टल, कंजम्पशन ट्रेंड ही अलग होता है तुम्हें. इवन तो मैं सेम मेस मेन्यू बना के डाल दूँगा. तो वो चीज़ डायरेक्टली हम स्टाफ पे नहीं बोल सकते कि स्टाफ की वजह से हो रहा है. और अगर मैं मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलूँ, वो काफ़ी हद तक मेस मैनेजर पे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी मेस मैनेजर्स हैं जिनका पर्सपेक्टिव होता है टू रिड्यूस द मेस बिल. तो वो फिर मतलब एफर्ट्स नहीं डालते ज़्यादा खाने की क्वालिटी इंप्रूव करने में. वो खाने की मतलब उसमें पॉन्डर्स कट करते हैं कि कहीं पे अगर दाल 4 kg मतलब 5 kg चाहिए होता था तो विथ 3.5 kg डाल देंगे. तो वो सब इशूज़ की वजह से वो ज़्यादा क्वालिटी कंसर्न रहती है. एज सच ट्रेनिंग जो स्टाफ का बोल रहे हो वो तो इशू है, बट दैट इज़ नॉट द मेन रीज़न फॉर डिस्पैरिटी इन हॉस्टल का क्वालिटी. तो अब हम ट्राई करेंगे मेस मैनेजर्स के पूरा स्ट्रिक्ट चेक लाने का. क्वेश्चन है कि चाइल्ड मेस से मैंने मिस कर दिया. जैसे अभी जो मेस में एक्स्ट्रा मेसिंग रन होती है उसमें खाली लंचेस में अवेलेबल होती है, वीकेंड्स में अवेलेबल नहीं होती है. आई थिंक ये लेवल सीन मुझे याद आया था. और अब आउट ऑफ द 21 मील्स आई हैव ब्रेकफास्ट लंच डिनर इनटू 3 to 7 आई कैन ओनली अवेल एक्स्ट्रा मेसिंग इन 4 मील्स, क्योंकि एक दिन पूरी सब्जी जैसे हर एक हॉस्टल में रहती है उस दिन नहीं अलाउड होता. तो आई ओनली हैव अबाउट 4 on 21 कितना 20% हो गया. तो मैं 20% तक नहीं एक्स्ट्रा मेसिंग अवेल कर पा रहा हूँ. क्या एक्स्ट्रा मेसिंग का अमाउंट बढ़ाया जा सकता है फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को मेस फूड अगर अच्छा नहीं रखा, एक्स्ट्रा मेसिंग इज़ द ऑल्टरनेटिव जो कि थोड़ा सा चीपर होता है उनके लिए वर्सेस ऑर्डरिंग पूरा खाना बाहर से. एक्स्ट्रा मेसिंग पे सारे हॉस्टल्स में एक्स्ट्रा वैसे इतना नहीं है, मेरे उसके लिए चूजिंग सिस्टम प्ले. उस चीज़ पे मैं दोनों का एक क्वेरी बताता हूँ कि तुम जो बोल रहे हो ये मल्टीपल टाइम्स वाला, ये हमने लास्ट ईयर जीपीएस पर डिस्कस किया था. उस चीज़ पे एक इशू जो आया था देयर वाज नंबर ऑफ वर्कर्स. तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बस लंच में ही क्यों होता है एनी आइडिया? कभी रात को उनकी शिफ्ट जो होती है वो 5 बजे तक होती है. ब्रेकफास्ट से लंच ही होती है, फिर लंच के बाद चले जाते हैं और फिर डिनर के लिए अलग शिफ्ट खिलाते हैं. तो नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर डिनर शिफ्ट तो अभी कम होंगे. और वीकेंड्स पे जैसे सर ने बताया कि नंबर ऑफ वर्कर्स ऑलमोस्ट हाफ बजाते हैं, इसलिए वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा मिसिंग नहीं होती. तो अगर एक्स्ट्रा मिसिंग की आई फील इतने सारे वर्कर्स नेसेसरी नहीं होते हैं, और उसके आप ज़्यादा एक्सपर्ट है कैसे? हाँ मतलब ये चीज़ मतलब थोड़ा तो इस पर मिक्स कर गई. ये तो खैर मेंटेनेंस नहीं वाला क्लीनिंग या उससे रिलेटेड हो गया. हमारे पे ऐसा रहता है कि जो शिफ्ट होता है वो होता है अराउंड 6 to 2 वाला एक शिफ्ट होता है. यस राइट, 1 to 9 वाला शिफ्ट होता है. और तुम अगर एक्स्ट्रा मिसिंग कभी देखोगे मोस्टली वो थोड़ा 12:45 टाइप से 12:30 टाइप से 1:30 टाइप से कर वैसे. ठीक है, तो उसका रीज़न ये होता है कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सेस ऑफ वर्कर्स रहता है और उनमें से 1-2 बंदे बना देते हैं. अभी हमारे हॉस्टल्स में थोड़ा सीन ऐसा है कि अगर हम डिनर में स्टार्ट करना भी चाहे, किसी हॉस्टल में अवेलेबल है मतलब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किसी हॉस्टल में स्टाफ अवेलेबल है, बट किसी हॉस्टल में जेन्युइन क्रंच है, तो एक्चुअल क्रंच है. और सिंस अभी रिसेंटली 24 एंट्री स्टूडेंट्स आए हैं तो काफ़ी हॉस्टल्स तो ओवरलोड हो चुके हैं, मतलब क्योंकि डबल रूम्स में रह रहे हैं और किसी हॉस्टल का इनिशियल डिज़ाइन वॉज मेड फॉर सिंगल रूम्स, तो ओवरलोड हो चुका है. तो उस पर हमें मोस्ट प्रोबेबली एक्स्ट्रा वर्कर्स का वो सप्लाई करना पड़ेगा. बट हाँ, ये चीज़ लास्ट ईयर जो डिस्कस हुआ था, एक तो ये वर्कर वाला सीन आया था और काफ़ी लोग मतलब उस पर रजिस्ट किए थे इस सेंस में भी कि हम नहीं कर पाएंगे या नहीं बना पाएंगे. वो वाला भी थोड़ा एस्पेक्ट था कि इतना ऑप्शन मतलब जैसे मान लो डिनर है उसके साथ हमारा पर्सपेक्टिव था कि 2-3 आइटम्स एटलीस्ट और एक्स्ट्रा होनी चाहिए. और उनका था कि नहीं हम डिनर के साथ ये चीज़ नहीं बना पाएंगे, कहीं पे कोई दूसरा एंगेज होते रहेगा, तो वैसा कंसर्न था. फिर भी आई थिंक सम हॉस्टल्स दे ट्राई कि एटलीस्ट मान लो बॉइल्ड टाइप हो गया या पनीर भुर्जी हो गया या एग भुर्जी, मतलब बेसिक मिनिमल. अगर बट आई थिंक ये 1-2 हॉस्टल्स में ही होता है डिनर के टाइम, बट दूध का भी आई थिंक 1-2 हॉस्टल्स येस, बट मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स में वही है. और हाँ, किसी हॉस्टल में नहीं हो पाता है क्योंकि एक तो मेस मैनेजर्स की तरफ से रेजिस्टेंस है उसके लिए कि वर्कर्स हम नहीं मैनेज कर पाएंगे. कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी डॉक्टर्ड फॉर्मेट में भी होती है कि सिंस मुझे दिखाना है कि मुझे एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए, तो इवन इफ़ पॉसिबल है एक्स्ट्रा वर्किंग मैं चालू नहीं करवाऊँगा. वो एंगल भी थोड़ा रहता है. आई एम नॉट सेइंग कि वो तुम्हारे केस में हुआ होता होगा, बट वो भी एक एंगल रहता है. और उस पर हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि अगर हो सकता है कैसे होगा, तो उस पर हमें थोड़ा अपने एंड पे प्रपोजल्स देखने पड़ेंगे. के तक आता ही है एक ऐसा रूमर भी या फिर एक ऐसा अंडर कर इतना स्टूडेंट्स है कि मेस मैनेजर शायद ट्रांसफ़र हो रहे हैं या उनका ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में कुछ बताएंगे सर? हाँ, तो उसका मैं तुम लोग को ब्रीफ बता देता हूँ कि हमारा टारगेट ऐसा था कि मतलब मैं थोड़ा हिस्ट्री से ही आता हूँ. जनरली क्या होता है कि टाइम टू टाइम मेस मैनेजर्स नहीं मतलब सबका ही मेस मैनेजर्स, केयर टेकर्स, मेस स्टाफ सबका ही ट्रांसफ़र होता था.
इस बार हम थोड़ा चाहते थे कि वो चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए। पहले थोड़ा रैंडम चलता रहा है कि कभी इसका हो रहा है, कभी किसी और का हो रहा है। कुछ स्पेसिफिक ईयर्स थे इसमें थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल पे ट्रांसफर से ज़्यादा अप्रोप्रिएट इज शफलिंग, बिकॉज वो के हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम कभी दूसरी जगह भेज दे रहे हैं। तो उस चीज़ पे इस बार हमने कोशिश किया था कि सब मतलब नियरली सब मेस मैनेजर्स का ट्रांसफ़र हो जाए इनिशियल लेवल पे। बाकियों का भी हम करते थे, केयर टेकर्स हो गया, मेस स्टाफ का हो गया। सो उसका लिस्ट बन चुका था, वो फॉरवर्ड भी हो चुका था, एंड अराउंड 28 अगस्त तक इट वाज नियरली फाइनल की ट्रांसफ़र्स हो ही रहे। बट उसके बाद कुछ चैलेंजेस आ गए वार्डन्स की तरफ से, कंप्लेंट्स या फिर डायरेक्टर लेवल भी। उसका इनिशियल लेवल से ही कुछ कंप्लेंट्स आ रहे थे। इनिशियली मेस मैनेजर्स ने कंप्लेन किया था कि कुछ एकोमोडेशन नहीं कर पाएंगे, वो इस टाइम के लिए ट्रांसफ़र करवा पाएंगे। फिर इमीडिएटली उनका टारगेट था कि जुलाई में जब सेमेस्टर स्टार्ट होगा 22 जुलाई तब तक करना था। वो नहीं हो पाया था। फिर डेडलाइन वॉज शिफ्टेड टू 31 अगस्त। तो 31 अगस्त पे फिर 28 के अराउंड रिमाइंडर आया था, उस पर नहीं हो पाया था, मतलब ड्यू टू सम रीजंस नहीं हो पाए। एडमिनिस्ट्रेशन से भी प्रेशर था, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी प्रेशर था कि नहीं हो। तो एज ऑफ नाउ इट हैज़ बीन ऑल्टेड, एंड उसकी एक मीटिंग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हो रही है। वार्डन्स मीटिंग होगी मोस्टली, और उस पर फिर वे फॉरवर्ड निकाला जाएगा। एंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स बॉडी साइड आई एम सेइंग, या हमारे दिनों की तरफ से हम बोल रहे हैं कि ट्रांसफर्स तो होना ही चाहिए। और उसका मेन रीज़न ये होता है कि किसी चीज़ को भी तुम स्टैग्नेट कर दोगे कहीं पे तो अनप्रोफेशनलिज्म स्टार्ट हो जाता है। और वो जैसे मैं पर्सनली डील कर रहा था इस चीज़ को, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो मुझे काफ़ी जगह पे दिखी है वो अनप्रोफेशनल, जो नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि दिस इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस एंड वी एक्सपेक्ट हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ऑल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि कोई चीज़ को पर्सनली नहीं ले। और मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कि ये ट्रांसफर्स में काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को पर्सनल इशू बना दिया कि हम नहीं करने रह गया, हम नहीं जाने देंगे, हो सकती है इशू। खैर वी आर ओके की बाई नेक्स्ट मंथ विल बी एबल टू कॉप। सर जैसे बेस्ट मैनेजर पे ट्रांसफर होगा, इस तरीके से मेसी वर्कर्स का क्यों नहीं हो रहा है? उनका भी होगा। वी आर ट्राइंग फॉर अ फेज वाइज मैनर, क्योंकि जैसे तुम देखोगे कि मेन दो ही एस्पेक्ट्स हैं, एक मैस और एक मेंटेनेंस, या मैस मैनेजर एक केयर टेकर है। इनिशियली हमारा टारगेट तुम्हें ऐसा भी था कि दोनों को साथ में ही कर देते हैं, बट वही चीज़ है कि हॉस्टल को मतलब कोई अगर जाता है, यू नीड समवन जिसको पता हो हॉस्टल कैसे चल रहा है, क्या क्या इशूज आते हैं। वो जो भी नया बंदा आएगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट ऑन टॉप सो वी आर ट्राइंग इट इन अ स्टैगर्ड मैनर। मोस्टली अभी जैसे मेस मैनेजर्स का होगा इनिशियली, उसके कुछ दिन बाद विल ट्राई कि केयरटेकर्स का होता है, पेपर वो हो जाता है, फिर मोस्टली बाय नेक्स्ट सेमेस्टर विल ट्राई कि मेस वर्कर्स का भी शिफ्टिंग। सर जो मेस वर्कर्स की शिफ्टिंग हुई है, आप उसे कैसे करना चाह रहे हैं? कि मतलब जैसे हमारे हॉस्टल की कैलाश के सारे वर्कर्स है वो किसी और हॉस्टल में चले जाएंगे, या फिर स्पेसिफिकली आप अलग अलग इंडिविजुअली सीखने शॉप अलग से? हाँ, इस चीज़ पे भी वही है कि हम ड्यूरिंग द मेस मैनेजर होता है, तुम लोगों को पता होगा किसी हॉस्टल में इंडिविजुअल मेस मैनेजर होता है, किसी में दो होता है, एक मेस मैनेजर होता है, किसी असिस्टेंट मेस मैनेजर होता है। यहाँ पे भी जब हमने ट्रांसफर्स का लिस्ट निकाला था, मतलब हमने तो नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला था, हमारा रिकमेंडेशन यही था कि सबको इंडिविजुअली भेजा जाए, क्योंकि जो अगर मान लो कहीं पे अनफुलफिल्ड प्रोफेशनलिज्म आया है, दैट कैन ओनली बी रिड्यूस बाय ब्रिंगिंग अ न्यूनेस इन द सिस्टम। समझ इकोसिस्टम को ब्रेक कर रहा हाँ, है। yes, तभी वो सही बात है। वी नीड टू रिवैम्प द कंप्लीट सिस्टम। तो जैसे तुम बोल रहे हो, हम पूरे ग्रुप को शिफ्ट नहीं कर रहे होंगे। ऑब्वियसली ये तो होगा कि जैसे मान लो 30 वर्कर्स है, देयर आर नॉट 30 हॉस्टल्स, सो कुछ पर डेफिनेटली कॉमन जगह जा रहे होंगे, बट वी बी ट्राइंग कि मोस्ट ऑफ द पीपल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा एक इशू ये आता है कि किसी वर्कर्स का किसी वर्कर्स के साथ हिस्ट्री होता है ऑफ नॉन कोऑपरेशन या कुछ स्पेसिफिक इशूज़। विल ट्राई कि वो चीज़ रिजॉल्व हो जाए, ताकि कुछ अननेसेसरी इशूज़ ना क्रिएट हो, एंड विल ट्राई टू एंड वर्कर्स में तो शिफ्टिंग है, ये मतलब ये अभी पहली बार होने वाली है? फिर नहीं, ये सब चीज़ें पहले भी होती कब हुआ करती थी, और लास्ट थी वो, हाँ वो भी हुआ था। और मतलब उसका हमारा टारगेट ये है कि वो जैसे पहले होता था काफ़ी अनरेगुलेटेड था वो चीज़। ऐसा नहीं था कि एक स्पेसिफिक ईयर में इतने लोगों का ट्रांसफर करना है, वो काफ़ी रैंडमनेस पे चलता था। कि जैसे मान लो कहीं पे वो पर्सनल लेवल में भी आता था कि सपोज एक मेस मैनेजर की एक मेस से किसी नहीं बन रही है, तो फिर अगले साल वो मेस मैनेजर खुद ही ट्रांसफर ले लेता था कि आई कांट वर्क इन दिस एनवायरनमेंट। कहीं जैसे मान लो कोई वर्कर्स का किसी मेस मैनेजर के साथ थोड़ा वो हो गया, अनबन हो गया, तो फिर वो कुछ ले लेते ट्रांसफर। कुछ फॉर्मेट में होता था, बहुत कम बार ऐसे होते थे कि मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो रहा है, वो भी होते थे नो डाउट, बट वी आर इस बार ट्राइंग कि सब कुछ कॉमन टाइमिंग में हो। उस चीज़ में क्या होता था कि बायसनेस आती थी सॉर्ट ऑफ,
जैसे मान लो अगर मैं पर्सनली सपोज आई एम डी जी मेस एंड मैं पर्सनली मेरे हॉस्टल की मेस मैनेजर को शिफ्ट करवाया किसी दोस्त से हॉस्टल, इस एसेंशियली बायसनेस मैं चाह रहा हूँ कि मान लो मुझे खुद के लिए अच्छा रखना है और बाकी जो है बट इस बार हम पूरा ट्राई करें कुछ बायसनेस ना आए, फुल्ली रैंडम हो, इवन द फुल रैंडमनेस इज नॉट पॉसिबल, मतलब जितना हो सके तो इन एक्सटेंड मैक्सिमम रैंडमनेस एंड ऑल्सो सारे हॉस्टल उसमें, ताकि कोई बायसनेस ना रहे और इक्वली मतलब इम्पैक्ट करे, समझ सब दो पे कंटिन्यू। सो तो एक सॉर्ट ऑफ कॉमन क्वेश्चन था कि जो भी मेस मैनेजर्स हैं या जो भी केयर टेकर्स हैं, तो क्या स्टूडेंट्स की तरफ से कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए फॉर दीज पीपल कि मेरे हॉस्टल को मिस मैनेज कर रहे हैं? बिकॉज व्हेन आई रेज कंप्लेंट्स टू माई HWC, माई मेन से मैं मैसेज की वो मेरे को बोलते हैं मैंने तो फॉरवर्ड कर दिया है, अब मैं क्या करूँ? आई थिंक मतलब वे ऑल क्लीम है उन कि हर हॉस्टल में एक हायरार्की होती है। यू गो ऑन फ्रॉम द हॉस्टल सेक्रेटरीज टू द केयर टेकर टू द वार्डन। द वार्डन इज अथॉरिटी एक हॉस्टल के अंदर जो प्रोस्को होती है। सो हर एक एक्शन जो आपको रेस करना है, सॉरी, उसका जो क्राइम वो होता है उसका वो वार्डन होता है। सो मतलब कारागृह में व्हाट वी हैव स्टार्टेड इज वी हैव क्रिएटेड अ मेंटेनेंस कमेटी, जिसमें हमने वार्डन, केयर टेकर, असिस्टेंट केयर टेकर, मेस मैनेजर्स इन द रेलेवेंट हॉस्टल भी इसको रखा हुआ है एंड टू द कम्युनिटी, जो कमेटी हमारी। एंड उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि केयर टेकर से रिजॉल्व नहीं हो पाई होती है, तो इंश्योर कि वो चीज़ वार्डन की रिपोर्ट में आए। एंड मेरे ख्याल से वार्डन ये चीज़ कर देता है। मतलब इफ़ यू हैव अ रिस्पॉन्सिव वार्डन विच इज़ ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वार्डन्स आर रिस्पॉन्सिव इन द इकोसिस्टम टू करेक्टली एग्जिस्ट करता है, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। वार्डन इंश्योर करेगा कि वो केयर टेकर वो चीज़ कर ले। बट इफ़ इट इज़ एट अ वेरी हाई एडमिन लेवल कि बहुत ऊपर से अप्रूव नहीं हो रहा है, देन वार्डन कौन जाएगा, देन यू हैव टू पुश इट टू द ADHM लेवल्स। बट केयर टेकर की इमीडिएट आपको कंप्लेंट करनी है या फिर मेस मैनेजर ही करनी है कि मेस मैनेजर हो रहा है, सो दैट विल हैपन टू वार्डन एंड वार्डन विल इंश्योर कि वो चीज़ रिजॉल्व हो जाए। So the problem which many students face is that they feel that their mess manager or the caretaker in the hostel are unresponsive. In such instances, you know, we report to our HWC members कि ये problems है, but they tell us कि यार मैंने तो पुश कर दिया, admin नहीं करा तो मैं क्या करें? तो इन केसेस में क्या मेस मैनेजर्स और केयरटेकर्स के बारे में कोई एक रिस्पॉन्स इशू कर सकते हैं स्टूडेंट्स ही, या वार्डन्स से बात कर सकते हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी उनकी बनाई जाए या फिर कोई स्पेसिफिक केसेस को बाहर लाया जा पाए? Please. Warden is the supervising officer of mess managers and the caterers. So complaining the ward should ideally resolve this entire block. इसका भी कदर उनसे भी नहीं हो रहा. Definitely there's the ADHA and so the transfers can be made. अगर बहुत problematic है, sudden warnings can be given. Show cause जो होता है. Bad news of song को एंड वो ये कि वार्डन इज सुप्रीम अथॉरिटी, विच इज ट्रू। मतलब हॉस्टल के अंदर कोई भी चीज़ एग्जैक्टली आपको अगर यू को टाउट ज़्यादा एक्सप्लेट करनी तो वार्डन इज द प्राइमरी अथॉरिटी इस चीज़ के लिए। What you could possibly do is you could establish a committee या फिर एक WhatsApp group भी इस तरह शुरू होता है जैसे कारागृह में है साइट फैसिलिटी अवेलेबल दैट ईयर्स 2 years बाद एस्टैब्लिश करी थी जिसको दैट वी हैव क्रिएटेड अ कमिटी, वार्डन की, केयर टेकर, असिस्टेंट केयर टेकर, मेस मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड द पर्टिकुलर हॉस्टल सेक्रेटरी, मतलब इसकी मेस मेन देन BHM रिप्रेजेंटेटिव, इतने लोग और हॉस्टल सेक्रेटरी उसके अंदर कि आपको कोई भी कंप्लेंट जो आप केयर टेकर को इनडायरेक्टली रेस करते हो जाके बोलते हो केयर टेकर अनरिस्पॉन्सिव हो उसके लिए, सो वी हैव एस्टैब्लिश कि आप उस चीज़ को ग्रुप पे डालते हो एंड वार्डन मुझे देगा कि एक्चुअली चीज़ नहीं हुई है रिजॉल्व इतने दिन से, एंड वार्डन ने डायरेक्टली आज केयर ये चीज़ क्यों नहीं होनी है। एंड मतलब मेरे बहुत से ऐसी चीज़ें जो कि नहीं हुई थी वो चीज़ इस टू भी रिजॉल्व हो जाती है क्योंकि केयर टेकर विल डेफिनेटली आंसर टू द वार्डन इन 90% ऑफ द केसेस। मतलब ये हमेशा होगा कि केयर टेकर को बताओ कि यार वार्डन मेरे ऊपर बैठा हुआ है एंड आई नीड टू रिजॉल्व दिस, अगर वार्डन के वो नोटिस में आ गया है तभी पक्का हो जाएगा वो चीज़। देर आर सर्टन केसेज जिसमें वार्डन की रिस्पॉन्सिव नहीं है या फिर ऐसी बहुत हाई लेवल एडमिन इशूज़ हैं जिसमें वार्डन भी कुछ नहीं कर पा रहा है, देन वी कम इनटू पिक्चर एंड वी ट्राई टू पुश इट टू आवर एंड कि कम से कम वार्डन तो पोलिशन बना के यू टेक देम टू ADHM then try to resolve it कि एक कॉमन हॉस्टल लेवल इशू आ रहा है which is not being resolved at an individual caretaker level and can we take it directly to you and can you resolve it centrally and then we can take it. But I would recommend कि ऐसे बहुत कम इशू हो जाए क्योंकि इतने हाई होते हैं एस्केलेट हो है। what you could possibly do is always create a groups में तुम वार्डन इन्वॉल्व हो एंड वार्डन के थ्रू चीज़ें पुश कराओ, केयर टेकर नहीं कर पा रहा है चीज़ को। सर तो ये प्रॉब्लम आई जब वी हैव प्रॉब्लम्स कि HWC ने पास कर दिया और फिर नहीं हो रहा। अगर HWC के साथ हमें प्रॉब्लम्स आए तो हम क्या करते? जैसे मान लीजिए कोई हॉस्टल में मेन सेकी तो अनरिस्पॉन्सिव है या अगर हाउस सेकी मेन सेकी का अच्छा है तो फिर जो प्रॉब्लम्स या कंसर्न्स हम रेस कर रहे हैं उसको उतने अच्छे से नहीं देख रहा है मेन सेकी, तो जो हमारा POC है हॉस्टल में हाउस सेकी वो भी एक्शन नहीं लेगा। इन केसेस में हम क्या कर सकते हैं? और ऑल्सो सर HWC का जो स्ट्रक्चर है जैसे BHM कॉन्स्टिट्यूशन में
उसमें हाउस की नॉमिनेट्स अ लॉट ऑफ द मेंबर्स, तो सॉर्ट ऑफ 1/3 कोरम तो हाउस के ही हाथ में ही है। तो आप कोई भी हॉस्टल मैनेजमेंट या हॉस्टल सेंटिमेंट इशूज़ होंगे, कोई भी इम्पीचमेंट प्रोसेस होगा, तो उसमें तो इन जनरल स्टूडेंट विल अब नहीं आएगा ना, क्योंकि हाउस सिटी के पास इतनी ज़्यादा नॉमिनेटिव पावर्स है। तो क्या ये स्ट्रक्चर आपके हिसाब से रिवाइज होना चाहिए? और अगर इन जनरल मेन सेकी से या HW से प्रॉब्लम्स है, तो स्टूडेंट्स कहाँ पे कैसे अप्रोच कर सकते हैं? लास्ट चैनल बॉडी मीटिंग हमने डिस्कस किया था कि जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स वर नाउ नॉमिनेटेड बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वो इलेक्टेड हो जाए, बट ऑब्वियसली द एडमिट रेजिस्टेड दैट टू, उससे बेटर हो जाएगा सिस्टम, बिकॉज ऑब्वियसली हाउस के पास एक्सैक्टली कोरम आधे से ज़्यादा होता है, अभी वो नहीं होता, एंड देन यू कैन इम्पीच देम बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम्स। तो जेन्युइनली कुछ वो रोड ब्लॉक्स क्रिएट करे, बॉटलनेक्स क्रिएट करे या नहीं। सो डिफरेंट वे टू थिंकिंग ऑफ changing the constitution of it socially. Poor clarification, इसमें मतलब there was not much resistance from the admin side, rather from the house secretaries only, क्योंकि उनका ये क्वार्टर भी था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बेसिकली एचडब्ल्यूसी में क्लास जॉब डेजिग्नेट करता सकता है कि 2 फर्स्ट ईयर्स होंगे 2 सेकंड ईयर्स होंगे, बट एक्जैक्टली कौन फर्स्ट ईयर्स होगा एक्जैक्टली कौन सेकंड ईयर्स होगा ये चीज़ क्लैरिफाइड नहीं होती उसके अंदर। थर्डली ऐसा होता है कि 4th या 5th ईयर की भी कॉम्पोजिशंस होती हैं उसके अंदर, बट यूजली क्या होता है कि वो लोग बहुत विलिंग नहीं होते हैं काम करने के लिए, देखो बहुत कम पॉइंट होता है आपको एचडब्ल्यूसी में रखने का या फिर इन इटसेल्फ मेंटेन मैस कमेटी में रखने का। तो हाउस सेक्रेटरीज का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम अपने आप डिसाइड कर रहे हो, मैं इसको रखना है उसको नहीं रखना, कौन काम करता है कौन नहीं करता है। एंड शायद उससे ही जो तुम बात कर रहे हो कि एचडब्ल्यूसीज में एक पर्टिकुलर फोरम एस्टैब्लिश जाता है कि आप कोई भी एजेंडा पुश फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, इट इज अगेंस्ट द विश ऑफ द हाउस सेक्रेटरी, दैट इज अ वर्ड हो। तो इसके लिए आई थिंक दिस समथिंग पुशिंग द फॉर इलेक्शन, आई थिंक दैट टू बेटर, कम से कुछ पोस्ट द इलेक्शन हो फिर इफ नॉट पोल, ताकि एक पर्टिकुलर अपोजिशन क्रिएट हो फॉर एनी पर्टिकुलर एजेंडा जो कि हाउस सेक्रेटरी के विश के अगेंस्ट हो रहा है। सो आई थिंक उसको उस करना इज इंपॉर्टेंट, एंड मतलब उससे एक अभी चीज़ भी ये चीज़ हो जाएगी कि इफ एक्चुअली द 2/3 ऑफ द कोरम विशेज फॉर दैट HWC member to resign, then that will also. सर वन मोर क्वेश्चन, एग्जैक्टली वेजन कॉन्ट्रीब्यूशन का है बात करी, अगर HWC में रिस्पॉन्ड नहीं करा, हाउ डू आई रीच आउट टू मे बी वन ऑफ द Gen X, और शुड आई रीच आउट टू यू और शुड आई रीच आउट टू समवन एल्स? मेरा मेन जगह रिस्पॉन्स नहीं करा, मैं रुक गए, मेरे एडमिन डिलीट कर दिया या मैसेजेस डिलीट कर दिए। मैंने HWC के जो हाईएस्ट POC है हाउस की उनको बोला, उन्होंने ये कंप्लेंट्स फॉरवर्ड किए, बट अभी तक एक प्रॉपर एक्सीडेंट नहीं हुआ है एंड आई एम नॉट फीलिंग हर्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ एज अ स्टूडेंट? नहीं डेफिनेटली मतलब हम तीनों को अप्रोच कर सकते हो। हमारा ये होता है कि जब भी वो मेंटेनेंस सेक्टर की प्रॉब्लम आती है उसी ना अप्रोच DG में, कोई मेंस सेक्रेटरी पर्टिकुलर होती है तो वो DG में इसको कहना कलेक्टिव भी हम तीन साथ भी काम करते हैं, सो वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। बट ऐसा होता है कि यार यूजली इस प्रॉब्लम आती नहीं है, यूजली हाउस सेक्रेटरी रिस्पॉन्ड कर देता है, बट एक्चुअली में इतनी चीज़ एस्केलेट हो गई है, सो आई बी शेयरिंग ऑल दी नंबर्स जो हमारे होंगे, एंड नीदर ऑल्सो आई वन द BHM वेबसाइट। Additionally, there are 2 BHM secretaries as well, so you can reach out to any of the 5 people, and that is open for the entire ITL community. And जो और escalate problem आती है तो it will be definitely willing to act. In fact, if a lot of problems are there, notify करो, document tender problem, recurring है तो वो भी document करो, and tell us there are certain provisions in the constitution जिससे हम we can remove the POR sanctuary, तो उनको डर होना चाहिए because काम करने के लिए उनको voices मिले, so they should be responsible. And एक additional document बोल रहे हो, that is a better we could do it is you can send out a mail, you could tag all the BHM secretaries हैं, all the DG and you can tag that particular house secretary you नहीं हो पा रहा possibly call हो पा रहा है, and you can tag the ADHM as well, and you put out a mail regarding कि यार ये चीज़ें हो रही हैं हॉस्टल में, ये चीज़ नहीं हो पा रही इस बार, that puts out a very clear message कि काम नहीं हो रहा है, and that is being visibly seen by all the other people in the BHM, and that will work, मतलब उसको समझ आएगा कि यार काम नहीं होगा तो ये चीज़ दिख जाएगी, ठीक है तो कुछ छुप नहीं सकती बेटी। in your city talk about a detailed booking site on the S corner या e-acads की मेरे को अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, आई वांट अ गेस्ट हाउस, स्टूडेंट्स के लिए अभी हॉस्टल में खाली 1 रूम होता है, तो इसके बारे में आपने पढ़ाना चाहिए इनिशिएटिव ना रिलेवेंट क्यों है और इसको आप कैसे करें? तो एक्चुअली होता है हर एक हॉस्टल में गेस्ट रूम्स होते हैं, पर जनरली उनकी ऑक्यूपेंसी बहुत लिमिटेड होती है, मतलब मैक्सिमम 4 से 8 लोग माइनस। सो व्हाट हैपेंस इज यूजुअली एट ऑल टाइम्स सारे हॉस्टल्स फुल नहीं होते हैं, एंड देयरफॉर इफ यू नीड अ हॉस्टल रूम, हॉस्टल गेस्ट हाउस विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर एमरजेंसी गेस्ट, मान लो कि स्टूडेंट को इमरजेंसी आ रही है एंड दे नीड इट एसएप, तो आप इंस्टेड ऑफ काराकोरम में आपको आराम ही रहना है तो भी रहने का ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, दैट इज़ आर एंटायर पर्पस, कि अगर कोई पेरेंट आ रहा है तो उसको एमरजेंसी में नहीं आएगा,
एंड एमरजेंसी के ही बनाया गया है वो, ड्यू टू द अगर आप कॉस्टिंग्स देखोगे उसकी तो दैट इज एट द वेरी मिनिमल लेवल। मतलब कुछ हॉस्टल में एसीज भी नहीं है गेस्ट हाउस के अंदर, ताकि आपकी एसी चार्जेस ना लगे उसके अंदर। ये हम मतलब ये पूरा स्कोप है उस चीज़ का। सो वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि अगर एक एल्गोरिथम डेवलप हो जाए कि हॉस्टल एलोकेशन की, मतलब आपको एक पोर्टल में दिख जाए एग्जैक्टली कि किस हॉस्टल में जगह अवेलेबल है और उस हॉस्टल में बुकिंग करा सको, एंड देन मतलब आपकी इमरजेंसी आए तो यूज फर्स्ट। वी आर ट्राइंग टू कीप द गर्ल्स हॉस्टल एंड द बॉयज हॉस्टल सेपरेट इन दिस केस। ये हम ट्राई कर रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज हॉस्टल की पेरेंट्स ना होती, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि कभी बहन भाई भी आ जाता है, एंड देयरफॉर आप नहीं चाहोगे कि वो गर्ल्स हॉस्टल प्राइवेसी इन्वेट करें। सो वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश 2 डिफरेंट एल्गोरिथम्स फॉर इट। और हमने ये चीज़ ऑलमोस्ट डेवलप कर भी ली थी, लास्ट ईयर के एंड तक ये चीज़ हो गई थी, लास्ट ईयर के टेनोर से। बट थोड़ा सा CSC के एंड थोड़ा डिले हो रहा था क्योंकि प्रायोरिटी थोड़ा सा लो हुआ था ये। बट वी आर ट्राइंग टू पुश इट अप, एंड मेरे ख्याल से इस टेनोर में हो जाए चीज़। जब क्लेनलीनेस इंस्टीट्यूट का कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होता है तो इसमें क्या सैनिटरी आइटम्स वगैरह या फिर वर्कर अलॉटमेंट के बारे में क्या होगा? जैसे LH में भी पैन वेंडिंग मशीन्स है, बट एक्चुअली हमने और एक प्रोजेक्ट परस्यू किया था BSP के थ्रू ही, और उसमें हमने एक सर्वे लिया था एक्चुअली कि कितने गर्ल्स एक्चुअली यूज़ करते हैं, कितने को पता है। तो मोस्टली इशू ये था कि वो काफ़ी बार काम ही नहीं करता, और उसमें आपको कॉइन या फिर कैश देना होता है, और उसमें QR अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो एक तरह से रिडंडेंट सर्विस है। तो इसमें क्या कुछ BHM कर सकता है? टू पार्ट्स, एक पार्ट इज ड्यूटीलेस कॉन्ट्रैक्ट का, बहुत लेट होता है। दूसरा जो पार्ट और बता रहे हो LH का या फिर इंस्टीट्यूट साइड का, दैट इज नॉट एट BHM पार्ट, वो SAC देखता है एंड वो इंफ्रा यूनिट के थ्रू ही अप्रूव होता है, उनका है। बट मोस्ट में ज़्यादा कमेंट ये होने का आइडिया नहीं। बट इफ़ यू लुक एट द हॉस्टल साइड ऑफ इट, अगर इंस्टीट्यूट आप कहीं एज कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो वो अभी रिसीवली कुछ महीने पहले ही अब बुक होता जो नया वाला आया था, एंड देयरफॉर द न्यू निम्बस हार्बर जो अभी कंपनी है ये रिप्लेसिंग द क्वेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पहले को। तो अभी भी जो आप क्लीनलेस वर्कर मतलब क्लीनलेस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सोप होता है या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, बट एक एसेंशियल जो आइटम होता है दैट इज सोप, राइट, जो सब बिल्कुल यूनिफॉर्मली यूनिवर्सली यूज़ कर रहे होते हैं, हर बंदे को अफेक्ट कर रहा होता है वो चीज़ की क्वांटिटी वाज डिस्कस्ड लाइक मतलब शायद पिछले साल भी हम सेम टाइप पे डिस्कस कर रहे थे ये चीज़, एंड तब से ये प्रॉब्लम चल रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट निकलने वाला था उससे पहले भी बहुत पुश किया गया था जितने इंफ्रा यूनिट के मेंबर्स थे कि आप प्रॉपरली इसको इस्टेब्लिश करो कि एक डेफिनेट क्वांटिटी जाए सूप की, ताकि हमारे हॉस्टल्स में उस चीज़ की कैपेसिटी प्रॉपरली बनी रहे एंड कोई दिक्कत ना है। बट हमारी सारी डिमांड्स को मतलब ये माना गया कि ADHM देखिए उस चीज़ को, ADHM ने अपने एंड से जितना हमको समझ आया वो किया डेफिनेटली, बट कोई भी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं था उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट जो कि सौमिक प्रपोज भी कर रहा है अपने अंदर, इज द टेंडरिंग कमेटी, कि कोई भी टेंडर अगर निकले, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर निकले, दैट शुड हैव सम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन इन इट। तो वो चीज़ नहीं हुई जब पिछली बार भी लॉन्च किया गया था कॉन्ट्रैक्ट। और इस बार में जब अभी जो कॉन्ट्रैक्ट नया आया है उसमें भी जो एग्जिस्टिंग सोप की क्वान्टिटीज़ हैं दे आर फार लेस दैन वॉट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स, एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू पुश दिस प्रपोजल अगेन। मतलब फिर से हम क्या कहें कि सर अभी भी कम है, प्लीज़ इंश्योर कि कुछ ज़्यादा एडिशनल क्वांटिटी ऑफ सोप आ सके हमारे पास। बट मतलब मैं एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा, मैंने एक डीन को दिया था एंड उन्होंने मेरा प्रपोजल पढ़ा ही नहीं क्योंकि मैंने उसमें 2-13 नहीं लिखा हुआ था, एंड उसकी वजह से वो मेरा प्रपोजल पढ़े ना रहा हुआ है वो रीज़न से। सो मतलब ऐसी छोटी मोटी इश्यूज़ अगर आते रहेंगे तो फिर मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कितनी हम खुद पुश कर पाएंगे अपने लेवल पर। एंड मतलब अभी जो हमारे नए डीन आए हैं, डीन फ्रैग 2 नए अमित गुप्ता नाक्षा अमित सरनाला, तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ में एक्टिवली मेरे साथ पार्ट लिया एंड मतलब इमीडिएटली कुछ अमाउंट ऑफ सोप बढ़ा है। बट अभी भी जो क्वांटिटीज़ हैं वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जितनी हमें एक्चुअली चाहिए। सो वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट दिस ताकि वो इंस्टीट्यूट वेट से ही निकले वो पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सोप एंड वो चीज़ पुश हो सके। रिगार्डिंग द वर्कर एलोकेशंस, करेंटली जो वर्कर्स हैं वो ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल रूम भी नहीं हो पाती है, बट इफ़ यू लुक एट अ हॉस्टल लेवल तो नंबर्स ऑफ वर्कर्स प्रॉपर होते हैं। बट वीकेंड वीक डेज़ का इशू आ जाता है उसके अंदर कि द नंबर ऑफ वर्कर्स जो वीक एंड्स पे होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि उनको छुट्टी उसी टाइम पे दी जाती है कंपेयर टू वीक डेज़ के हाफ हो जाते हैं। मतलब इसकी अगर मेरा 4 वर्कर्स है तो 2 वर्कर्स ही रहेंगे सैटरडे को और 4 वर्कर्स रहेंगे वीक डेज पर, विच इज़ नॉट मच रिक्वायर्ड वीक डेज में, क्योंकि वीकेंड्स पर पूरा लोड होता है एंड देयर अबाउट सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, कोई इंस्टीट्यूट साइड तक नहीं जा रहा होता है, एंड देयरफॉर वी ट्राइंग टू पुश दैट एज वेल। मतलब अभी हम थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, बट अभी भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि एडमिन थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा इस चीज़ पर और इतना टाइम नहीं लगाएगा टू पुश सच स्मॉल एजेंडाज विच कैन बी डन इन 15 to 20 मिनट्स ऑफ टाइम। को एक अप्रूवल देना है इस चीज़ का एंड वो चीज़ हो जाएगी, बट वी आर ट्राइंग टू पुश दैट फ्रॉम द लास्ट 6 to 8 months। सो वी आर एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा एडिंग ज़्यादा कॉपरेशन इन दिस, ताकि छोटे छोटे एजेंडाज पुश करने में हमें इतना टाइम ना लगे, जैसा कि हम बाकी इंपॉर्टेंट एजेंडा शुरू कर सकते। सर आई फील हमारे साइड से इतने ही क्वेश्चंस थे,
and I feel that more or less all our concerns were answered, and whatever were not answered, we could sort of generate reasons as to why there are being delays or why some sort of admin BT या फिर some sort of legislation process में दिक्कत है या कुछ. And I think that overall for students जो main concerns थे कि how to reach out to you or are you approachable, वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक clarify हुई इस इंटरव्यू में. So I think हमारा purpose जो था that we get to know who are our general secretaries and deputy general secretaries, what is the BHM and what sort of work it entails, what is specific issues that they are trying to deal with at present. I think overall more students would have got to know about that. So for that, I think Thank you.